मैं जानना चाहता हूँ डार्क साइड ऑफ बॉलीवुड। आप सुशांत सिंह राजपूत की डेथ बोल लो, कोई फ्रेंड्स नहीं है। बहुत जगह हमें सुनने मिला है कि यार फ्रेंड्स नहीं बनते इस इंडस्ट्री में, तो आपको लगता है ये सच है? बट मोस्ट ऑफ द फ्रेंडशिप्स मैं बोलूँगा ट्रांजैक्शनल। हमने काफ़ी ज़्यादा स्टोरी सुनी है कि ड्रग्स चल रहा है, सेलिब्रिटीज़ ले रहे हैं। I'm sure there must be rave parties and all happening. There must be personal parties जहाँ पे weed etc. कंज्यूम किया जाता होगा. I'm sure that must be happening. कभी आपके साथ हुआ है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की है पीआर टीम ने एक इंटरव्यू में? So many PRs have asked me कि आप questions का सेट भेजो. मैंने जिंदगी में कभी भी किसी को नहीं भेजा and मैं ना किसी को भेजूंगा. एंड मुझे ये इंसिडेंट याद है कि यार जब आपके 200 सब्सक्राइबर्स थे तब सुनील शेट्टी सर भी आए थे। एंकरिंग को काफ़ी ज़्यादा बोला जाता है कि एंकरिंग लोग जो होते हैं वो स्पॉटलाइट ले लेते हैं, तो ऐसा सच है? My idea is not to steal the spotlight. एंड आपने कभी मौत के बारे में सोचा है? Hi guys, this is Shayansh Goyal. Welcome to my YouTube channel. So today we have a very special guest with us who is none other than Shubhojit Ghosh. He's an anchor and काफ़ी टाइम से ये कर रहे हैं। Hi, कैसे हो आप? Thank you bro. Thank you for calling me. I am doing great and I'm very happy that आज मिलके हम ये proper जो plan था ये execute कर पा रहे हैं. तो आप बताओगे कि आप कोलकाता से बिलोंग करते हो जी. एंड आपने ये कब सोचा कि एंकरिंग करना है मुझे? You know, the funniest fact about this thing is कि मैंने सोचा ही नहीं था. You know, I was in Kolkata during my college time. I was simultaneously doing fashion shows for my college team, etc. So that's when I started getting fascinated with this entertainment world, right? And आप जब college में रहते हो, आपके खर्चे उतने नहीं होते, तो थोड़े बहुत अगर professional modeling assignments करते हो, आपको पैसे मिलते हैं, so you start, you know, enjoying the flavor of money. So आपको लगता है कि यार मतलब पोज करने के लिए, फोटोज़ खिंचवाने के लिए या फिर रैंप पे चलने के लिए, अच्छे कपड़े पहनने के लिए फोटोज़ भी आएंगे, पैसे भी मिलेंगे, क्या बात है यार. सो दैट वाज वेरी फैसिनेटिंग. बट आई वाज डूइंग बीकॉम ऑनर्स इन मार्केटिंग इन कोलकाता, इन कैलकाटा यूनिवर्सिटी. एंड उसके बाद फिर लाइक यू नो द इंडियन सेटअप, राइट? पीपल डोंट feel comfortable with just a graduation degree. So in my case as well, you know, my parents, they were like, you should at least push yourself for something in the, you know, master space, and then maybe try whatever you want. So then I did. I was obviously not inclined towards MBA or CA, तो मुझसे होगा भी नहीं because I was not a very good student. तो मैंने सोचा क्या कर सकते हैं, तो I did something called Masters in Mass Communication again back in Kolkata. Okay. But the idea was to just borrow a bit of time because I wanted to pursue something in Bombay, in the entertainment field, in Mumbai. So मैंने अपने आप को 2 साल दिया during that, like I finished my graduation, immediately I started my masters. तो 2 साल अपने आप को दिया so that I tell myself कि यार कोशिश करके देखता हूँ क्या होता है. If it doesn't work out, I have a degree to fall back on. So I shifted to Bombay later, much later, but I started coming to Bombay, trying to build my network वगैरह. What I realized over here is that in a city like Mumbai, there are 500,000 of models coming every day, right? So the competition is very high. So I realized that you need to enhance your skill set beyond just maybe looking presentable on camera or beyond just, you know, knowing how to express and all. तो मैंने रियलाइज किया यार मैं थिएटर वगैरह का थोड़ा बैकग्राउंड मेरा था, नॉट वेरी एक्टिवली. सो आई हैव लर्नड वॉइस मॉड्यूलेशन एंड ऑल. आई ऑलवेज लव टॉकिंग टू पीपल. So why not explore this part? So God has been kind. The time I finished my you know, post graduation, just 2 to 3 months back, I landed up with a platform called IWM Studios, and they were also planning to start their talk show related to Bollywood. And yeah, so I mean that's how it started. So I started doing that, you know, and then once I shifted to Mumbai, the talk show happened for that platform. Simultaneously I started building my contact for real live events, and you know, I mean, ever since then, 4 years I did that talk show for them. I thought it's a good time to start your own YouTube venture. It's been 2 years since my own YouTube venture and I'm doing events. So yeah, that's pretty much like a nutshell. So I never really thought, but it's more of an experience. जब मैं इधर आया तब मैंने realize किया कि in a city like Mumbai, like we always talk about upgrading our skills, right? I also realized the same कि अगर आपको competition में थोड़ा सा ऊपर बढ़ना है, आगे बढ़ना है, you got to upgrade your skill
और क्या क्या तरीके से आप वैल्यू ऐड कर सकते हो. सो फॉर मी I realize that these are the ways I can add value, so let me try and do that. So बस उसके बाद God has been kind, journey is on, चल रहा है, अभी देखते हैं where it takes forward. तो आप ये बताओगे कि मुंबई इज बेटर फॉर क्रिएटर्स या कोलकाता इज सोलफुल? देखो कोलकाता मैं इसमें ऑप्शन चूज ही नहीं कर सकता क्योंकि आपके दोनों ऑप्शन ही सही है इन इट्स ओन राइट. फॉर मी कोलकाता इज सोलफुल बिकॉज इट्स माय बर्थ प्लेस, जन्मभूमि है मेरी. So of course you feel connected, you have done your schooling, college, everything over there, you have your chunk of friends over there. आपके main core memories जो है, the formative years of your life, that's over there in that city, right? So Kolkata is always special to me. Mumbai का जो scene है, Mumbai teaches you and prepares you for the professional hustle. That I feel not just Kolkata, कोई भी दूसरा शहर नहीं कर सकता. But of course with great challenges come sacrifices as well. So आपको आपका comfort zone छोड़ के, a lot of people who come to Mumbai, चाहे creators हो या फिर people who come for jobs और business वगैरह, they leave their comfort zone, अपना खुद का घर का space, वो सब छोड़ के मुंबई आते because they want to build on their dreams and ambitions, right? So अगर if you're professionally inclined and if you're very ambitious and if you want to grow and if you want to give yourself the best opportunity, then Mumbai is the city to be in, especially for creators because this is the entertainment hub. But अगर आपको एक soulful जिंदगी पसंद है and you don't have too much of expectations from life in terms of ambition, then you can try creating a career from your own city as well. And आज तो because of internet आप कहीं पे भी बैठ के you are accessible to the whole world, right? But I think मेरा जो line of work है, I feel that Mumbai has always been the hub, so it was a no-brainer that I had to shift over here. But Kolkata has my soul always. एंड अगर मैं बात करूं कि आपके पेरेंट्स ने आपको नहीं बोला कि ये क्या कर रहे हो, एंकरिंग थोड़ी ना एक बिजनेस होता है, क्योंकि एक जॉब मेंटालिटी होता है कि पेरेंट्स का कि सिक्योर हो जाओ पहले एंड फिर आप ये सारी स्टेप्स ले लो. I have been very fortunate that way कि of course they have held my hand and they have guided me wherever required, but they have also had tremendous faith in me and they have always been like कि you do whatever you want. They always meant कि नहीं, एक basic जो पढ़ाई होता है वो आप कर लो, and which is very critical I believe. But उसके बाद if you feel that your passion is towards something else which you feel you can make a career about, then आप उसको करो. मुझे उस चीज़ को लेके I've been very fortunate and I always thank God and my lucky stars and the universe कि वो, because I know so many people, a lot of people reach out to me on DMs and they feel कि sir ये चीज़ का security क्या है, what's the frequency or guaranteed frequency of work, because हम अगर आएंगे क्या हो, मतलब always life of a freelancer is always full of doubts, right? आपको पता नहीं, it's not like a salary paycheck to paycheck आप नहीं जी रहे हो, right? So you got to always figure out ways to enhance your business. आप business ही कर रहे हो as a freelancer, आप भी as a creator, apart from whatever that it's a business at the end of the day, right? So uncertainties तो बहुत होते हैं, but if you have that mind and that flexibility कि कुछ भी हो जाए, you will follow your passion, you will work hard. ऐसा नहीं है कि सपने आप देखोगे, डे ड्रीम करोगे तो होने लगेगा. You got to work towards your dreams, and then of course luck also plays a part. So far I would say that जो भी चीज़ों पे मैंने मेहनत किया है शायद उसका मुझे फल मिला है. I personally feel कि मैं और बहुत सारी चीज़ों में और ज़्यादा मेहनत कर सकता हूँ, which perhaps I'm not doing now. अगर मैं वो मेहनत करता हूँ then I hope that I get those results. But I've been very fortunate that way. My parents, and I always express my gratitude to the universe कि उन्होंने मुझे वो करने दिया, and they have never, even if they did not have much idea about कि यार YouTube कैसे होता है, ये anchoring कैसे होता है, because they come from a different mindset altogether. But they had that faith in me कि यार you go ahead, we have your back. So that is very important if you want to live your dream. So I feel really bad जिनको शायद वो पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिलता, but God has been kind. I have had that. And अगर मैं बात करूँ कि मुंबई में काफ़ी ज़्यादा लोनली लगता है जब आप मुंबई आते हो, तो मुंबई आपको वेलकम भी नहीं करता है, क्योंकि पहली बार आते हो तो वेलकमिंग नहीं लगता है इतना, लेकिन आप जब रहने लग जाते हो, एक साल गुजार लेते हो आप मुंबई में, तो अपना सा लगता है मुंबई. तो आप ये बताओगे कि स्टोरीज की आपको सब कुछ छोड़ने का मन कर रहा था जब आप मुंबई आए थे एंड फिर वापस जाने का मन कर रहा था, तो वो सिचुएशन क्या थी? देखो
बाय गॉड्स ग्रेस मुंबई आने के बाद कभी मुंबई मुझे छोड़ने का मन नहीं किया, एंड टचवुड आई होप कभी करे भी नहीं, बिकॉज आई लव द सिटी and I've always been fascinated by the city. I love entertainment, I love movies, I love the pop culture. तो मुंबई is definitely the hub that way. तो मैं जब कोलकाता में भी रहता था स्कूल और कॉलेज, I always used to love मुंबई, the life of actors or the life of creators. तब तो creator word नहीं था, but people who were in the entertainment business. तो but what I realized is that कि जब मैं मुंबई आया था पहली बार, I remember I was putting up in a backpackers hostel near Santa Cruz. तो backpackers hostel में देखो मेरा काम था कि मैं most of the time तो बाहर रहूँगा लोगों से meetings वगैरह के लिए, रात को safely रहना ही है बस, washroom clean होना चाहिए, and a lot of Europeans वगैरह used to come for backpackers hostel. तो मेरे लिए वो सही option था, because of course you can't afford a rented house, ना ही आपको कोई कुछ दिनों के लिए rent देगा. What I used to realize is कि जब मैं free रहता था, I made some friends at that point of time. We used to go to Marine Drive, वो जो एक बैंड्रावली सी लिंक है, दैट इज़ अ वेरी इंस्पायरिंग, जस्ट द वाइब गिव्स यू अ वेरी इंस्पायरिंग फीलिंग. आप मरीन ड्राइव के सामने, पानी के सामने जब आप बैठते हो एंड यू सी द एंटायर ओशन एंड बिल्डिंग्स ओवर देयर, यू स्टार्ट एब्जॉर्बिंग दैट एनर्जी, यू फील लाइक यार दिस सिटी हैज सो मच टू गिव यू. तो अगर आप उस डायरेक्शन में करोगे, यू नेवर नो ये शहर ने किन किन लोगों को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया यार. तो वाई नॉट गिव योर सेल्फ अ फेयर चांस. तो बहुत सारे जगह में मुझे ये सिटी में ऐसा महसूस होता था कि यार इफ़ यू एक्चुअली कीप वर्किंग एंड कीप वर्किंग, हो सकता है ये शहर आपको बहुत कुछ आगे जाके देके जाए. सो इट हैज़ ओनली इन फैक्ट इंस्पायर्ड मी टू वर्क हार्डर, बिकॉज आई ट्रूली बिलीव इन दिस थिंग कि आप you are as good as your circle and the people around you. So if you have a circle of people around you who are very inspiring, who are 10 times perhaps more successful than you, then आप automatically उस direction में काम करने लगोगे. On the other hand, अगर आपका circle ऐसा है जो जहाँ पे शायद सबसे successful इंसान आप हो, then आप ऊपर नहीं जाओगे, आप शायद they will try to drag you down. वो बहुत unconsciously, subconsciously होता है. So मैं तो वही बोलता हूँ कि I have always had that environment around me, be it actors, successful directors, producers, who make 10 times more money than me, who are living a far better life than me, and who have been longer than me. So of course they will also enjoy those things. तो मैं देखता हूँ कि यार अगर मैं ये सब करूँ, हो सकता है ऊपर वाले के आशीर्वाद से शायद ये जिंदगी एक दिन मैं भी जीऊँ. So I'm always inclined to work harder. So I always believe कि आपका सर्कल जो होता है ना, especially in your professional years, very important. You have to surround yourself with people around you जो आपसे ज़्यादा successful हो. So Mumbai has never made me feel like कि go back. It has always made me feel like यार ये शहर को और मैं कैसे अपनाऊँ और कैसे मेहनत करूँ so that ये मुझे और प्यार करे. तो आप ये बताओगे कि एंकरिंग को काफ़ी ज़्यादा बोला जाता है कि एंकरिंग लोग जो होते हैं वो स्टोल कर लेते हैं शो को, स्पॉटलाइट ले लेते हैं, सेलेब्स को स्पॉटलाइट नहीं मिलता, तो ऐसा सच है? देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंकर इज समवन हु इज कंट्रोलिंग. जब आप, हम लोग MC बोलते हैं उसको, मास्टर ऑफ सेरेमनीज, राइट? व्हाई यू कॉल्ड अ मास्टर ऑफ सेरेमनीज? बिकॉज कुछ भी हो जाए, राइट फ्रॉम द लॉजिस्टिक्स पार्ट टू एनी इवेंट फ्लो, आप यू शुड बी एन एक्सपर्ट इनफ टू हैंडल कुछ भी, राइट? चाहे वो सेलिब्रिटी इवेंट हो या कुछ भी हो. आई हैव बीन फॉर्चुनेट मैनी टाइम्स जहाँ पे मुझे लोगों ने ऑन कैमरा, मेरे खुद के पॉडकास्ट पे बोलो या फिर व्हेन आई डू लाइव इवेंट्स, बहुत लोगों ने, मेरा थोड़ा बैरिटोन आ जाता है वॉइस में, लाइक गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बैरिटोन अपने आप आ जाता है. सो लॉट ऑफ पीपल हैव कॉम्प्लीमेंटेड मी कि योर वॉइस मे बी साउंड्स लाइक ऋतिक रोशन. ये सब मेरे को लोगों ने जेन्युइनली मेरे पॉडकास्ट पे भी बोला है, एक्टर्स ने भी बोला है, रणबीर कपूर हैज सेड इट ऑन कैमरा, Alive has said it on camera, so many people, right? So I feel inspired कि मैं कर रहा हूँ अच्छा, but personally मैं सिर्फ अपने बारे में बोल सकता हूँ, I can't talk about others, कि my idea is not to steal the spotlight. My idea is to give the spotlight to others, but of course if I am there on stage throughout the time, I have to also be good, right? I can't at the end of the day afford कि यार कोई बोले कि यार आपका शो तो कमाल का था लेकिन आपके एंकर ने अच्छा काम नहीं किया. उल्टा, if I do good work as an anchor, then 20 people will call me. The business ideas exchange होते हैं, काम exchange होते हैं, 20 people networking में will say कि यार हमारा event होगा, आप करोगे. So आपको अपना best करना है. You don't have to think कि आप spotlight change कर लोगे, ले लोगे. अगर आप ले लेते हो, then that's not your fault. You can't do anything about it. Maybe your aura and charisma is like that. But मेरे तरफ से the idea is never like that. I don't even think कि मैंने कभी ऐसा spotlight किसी से छीन लिया है.
उल्टा whenever I have welcomed celebrity guests on stage, I have always given them the limelight. I've always praised them for all the right reasons. So मेरे तरफ से तो इंटेंट वही है. अभी अगर कोई वैसे आता है कि सेलिब्रिटी से स्पॉटलाइट खुद लेगा, that's a trait जो मैं तो शायद नहीं रखता, एंड शायद होना भी नहीं चाहिए. यू शुड ऑलवेज मेक अदर्स फील इंपॉर्टेंट, चाहे वो सेलिब्रिटी हो या कोई भी हो. द स्पॉटलाइट इज फॉर यू टू गिव अदर्स एज एन एंकर, नॉट योरसेल्फ. आपका काम अच्छा होगा, इवेंट के बाद आपको लोग खुद बोलेंगे. एंड आपको एंकरिंग करते हुए ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो गए. जी. तो आप बताओगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था, क्या क्या चीज़ें आपने सीखा? एक्सपीरियंस तो भाई मैं अभी भी सीख ही रहा हूँ. मैं तो ऑलवेज बोलता हूँ कि इंसान देखो सीखना बंद नहीं करता. तो बट एक चीज़ मैंने सीखा है कि काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि जब शायद आई एम ऑन स्टेज, देयर आर 200 300 500 पीपल इन फ्रंट ऑफ मी. अगर कोई टेलीवाइज शो इफ आई एम होस्टिंग, देन यूजुअली टेलीप्रॉम्प्टर्स रहता है, सो यू गेट अ हेल्प. आपको इन ईयर रहता है यहाँ पे, कंसोल से पीपल गाइड यू, दीज आर द पॉइंटर्स एक्सेट्रा. बट द लाइव इवेंट्स दैट यू डू विच आर नॉट टेलीवाइज्ड, उसमें कोई प्रॉम्प्टर नहीं रहता. यू हैव अ सर्टेन इवेंट फ्लो. काफ़ी बार ऐसा होता है कि शायद मैं माइक में ऐसे कुछ बोल रहा हूँ, एंड अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ, आई डोंट नो कि व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड दैट आई एम गोना से. बट ऑलवेज बी इट बिकॉज ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस दैट यू नीड एज एन एंकर जब आप स्टेज पे होते हो, या फिर गॉड्स ब्लेसिंग्स कहो. मैंने हमेशा ये रियलाइज किया है कि भाई मैं स्टेज पे जाऊं, कुछ भी ऊपर नीचे भी अगर हो जाए, यू एज एन एंकर नीड टू हैव द कॉन्फिडेंस कि भाई मैं अगला वर्ड अगर मुझे पता भी नहीं हो, मैं भाई किसी को समझने नहीं दूंगा. को लगता है कि कुछ एमसीज जो होते हैं वो फ्लर्ट करते हैं एंड शोज़ में सही से दिखाया नहीं जाता. वो लोग चाहते हैं कि एंटरटेनमेंट हो जाए, बट कभी कभार अनप्रोफेशनलिज्म भी हो जाता है. देखो ये बहुत ही इट्स अबाउट वेयर टू ड्रॉ द लाइन. अगर मैं बोलूँ, ठीक है, लाइक आई हैव डन इवेंट्स वेयर आई हैव सीन. अगर मैं कॉर्पोरेट लाइव इवेंट्स के बारे में बात करूँ, सो ऑफ कोर्स अगर कोई मार्केटिंग इवेंट है, or an event where the CMO, CXO, CEOs of the respective companies, women हो या men हो, सब आते हैं, everybody is decked up well. So अगर मैं उन events में अगर उनको तारीफ के बारे में बात करूँ, so मैं भी तारीफ करता हूँ. but you have to understand one thing कि अगर कोई CEO या CMO है कोई कंपनी का, या बड़े लेवल का कोई टॉप बॉस है, फाउंडर है, their own personal attribute is not just how they look. उन्होंने मेहनत किया है उस मुकाम पे पहुंचने के लिए. सो अगर आप उनके शक्ल या उनके पर्सनालिटी के पहले अगर उनके काम का तारीफ करते हो, एंड देन यू ऐड अ बिट ऑफ फ्लेवर टू दैट, देन आई थिंक इट्स वेरी वार्मली टेकन. वो चाहे इफ इट्स अ मैन और इट्स अ वुमन रिस्पेक्टिव, दे टेक इट वेरी नाइसली, बिकॉज आप तारीफ ही कर रहे हो ना. बट द वे यू से योर वर्ड्स, द वे यू चूज योर वर्ड्स, दैट्स ऑलवेज बीन वेरी इंपॉर्टेंट. वो हर चीज़ में, आपको इंटरव्यू में जाओ जहाँ पे जॉब के लिए, अब वहाँ पे क्या वर्ड्स चूज कर रहे हो, दैट मैटर्स. किसी भी चीज़ के लिए the kind of words that you're choosing, that matters the most. कभी कभी अगर मैं फन अवार्ड शोज में बारे में बात करूँ जहाँ पे कॉर्पोरेट्स आर नॉट इन्वॉल्व, वहाँ पे ऑफ कोर्स अगर एक्टर्स एक्ट्रेसेस आर इन्वॉल्व, देन वी से स्टफ, वी शुड बी सेइंग दैट स्टफ, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इट शुड नॉट बी बिलो द बेल्ट. कल को जाके अगर किसी एक्ट्रेस को बोला जा रहा है कुछ, तो शी शुड नॉट फील कि अरे यार माई बाउंड्रीज हैव बीन वायोलेटेड. सो अगर आप किसी को तारीफ करोगे कि you're wearing a fantastic dress, we are loving your outfit, you're looking so beautiful, अगर आप किसी लड़की को बोलोगे, I don't think she will take it in a wrong way, provided what your body language is. Similarly, अगर मैं जब किसी somebody, an actor हो, किसी को मैं तारीफ करता, bro I want that suit, ऐसे करके, who's your designer, tell me, will you let me steal your wardrobe, क्या बात है, amazing stuff, you're looking dapper एकदम, Indian Tom Cruise and all that. So people love that. So I am also hyping them up because I want them to feel that way, because they have worked for that. So तारीफ अगर आप करोगे, you need to know where to draw the line. If you go below the belt, that might be considered as flirting. And अगर आप एक लिमिट मेंटेन करके रखते हो, एक प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करके रखते हो, which you only have to understand कि कहाँ तक प्रोफेशनलिज्म एंड कहाँ तक वो बाउंड्री ब्रेक हो रहा है, then I think there is no problem. At the end of the day, everybody loves compliments, don't they? राइट. एंड अगर मैं बात करता हूँ कि जो बिग इवेंट्स होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स होता है, तो आपको कभी कभार ऐसा लगा है कि आपको अंडरकट हुआ है या आपको पेमेंट नहीं मिली? आपके साथ हुआ है ऐसे इंस्टेंसेस? देखो मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज लाइक आई सेड कि आई मस्ट से कि आई ऑलवेज हैव अ क्लियर पेमेंट टर्म्स डिफाइंड. ठीक है,
There are two ways by means of which events come to me. या तो via directly people who know me directly, या फिर किसी ने contact pass किया, या फिर a lot of events come to me via my manager as well, who's a dear friend of mine and as well, Dharmishta. So and she's the biggest reason why my YouTube channel started and all. तो जो भी है, so this is what it is. But everywhere it's email पे clearly mentioned रहता है. Like if I talk about my payment terms, it's always mentioned 50% advance as an official mechanism to block my date for that calendar date. ठीक है, so उसके वजह से तभी मैं block करूँगा calendar 50% होने के बाद. The remaining 50% should be done within 2 to 3 business days after successful completion of the event. ये मैं हमेशा mention करता हूँ. So अगर आपका email पे mentioned है, if it is almost like an agreement, then you can't go wrong. But if you're trusting WhatsApp, if you're trusting new people immediately, then you have to feel you have to be very careful, because unfortunately there are more people outside who want to cheat you rather than more people who want to help you. Okay. So you have to understand how to protect yourself. I see in so many WhatsApp groups, मैं देखता हूँ anchors, young MCs वगैरह, they complain about coordinators ने पैसे काट लिए, या फिर मुझे payment नहीं मिल रहा है, this that. And I ask them that what is the scenario. अगर किसी ने मुझे reach out किया for suggestion, then I tell that what were your terms. then नहीं, हमारा कुछ email confirmation नहीं था. And understand, अगर आप किसी brand के साथ काम कर रहे हो या किसी के साथ भी काम कर रहे हो, and they are scared to have an email confirmation with you, please understand it's a very big red flag. हम लोग red flag, green flags के बारे में बोलते हैं, it's a red flag कि वो आपसे क्यों properly email पे confirmation नहीं करना चाहेंगे. So I always have this thing कि मेरा सब कुछ email पे mentioned होता है, तो वो सवाल ही नहीं है. एंड विद द ब्रांड्स और कंपनीज जिनके साथ मैं बहुत सालों से काम करता आ रहा हूँ, टचवुड एंड आगे जाके भी करते रहूँगा, उनके साथ एक रिलेशनशिप बन गया है. विद देम आई डोंट गो आस्क देम फॉर ईमेल कॉन्फर्मेशंस. वो भाई एक फ़ोन करते, व्हाट्सएप करते, भाई अगला इवेंट ये है, डेट खाली रखना. तो वहाँ पे आई नो कि इवन इफ आई डोंट टेक एन एडवांस, आई नो माई मनी इज सेफ, इट विल कम टू मी. So it depends on the brand's credibility, your communication, but you have to do everything to protect your own interest because nobody else will. एंड आप बताओगे कि काफ़ी लोगों को लगता है कि अवार्ड्स जो होता है वो स्क्रिप्टेड है, एंड इंडिया में स्पेसिफिकली कि काफ़ी सारे अवार्ड्स, और एंकर्स को कितने ज़्यादा फ्रीडम मिलता है ये अवार्ड सेरेमनीज़ में? देखो, अवार्ड सेरेमनीज़ में एंकर्स को बहुत फ्रीडम मिलता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो क्रिएटिव डायरेक्टर होता है, जो क्रिएटिव्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर होता है, इफ़ दे आर हैविंग यू एज एन एंकर टू होस्ट अ टेलीवाइज टॉक शो, it means they have tremendous faith in you and your abilities to speak, right? They have faith in your relationship with the people as well. Having said that, I'll first answer the anchor ka freedom wala part. So we have a lot of freedom, but of course the creatives are there. So if you see, हमारे in-ear लगे हुए रहते हैं, हमारा mic लगा हुआ रहता है. So sometimes we get inputs in in-ear as well. Like I'm just giving an example. Like say if I'm hosting a televised award show, and say a big star comes from behind, but I am supposed conversing with someone else and I don't spot that. So that big star coming is something that we need to hype up, right? तो अगर मैं इस तरफ देखूंगा तो मुझे in ear में बोला जाएगा, and all the anchors, some of them who have done televised show can say कि मुझे in ear में बोला जाएगा कि say for example से शाहरुख खान is come. तो ठीक है, so check right आपको in ear में बोला जाएगा, check right शाहरुख खान is come. तो आप देखोगे, then you see and you immediately say stuff. So आपको पॉइंटर्स दिए जाते हैं, बट व्हाट यू से इज योर क्रिएटिव कॉल. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स एक इवेंट का फ्लो रहता है, लाइक इतने ब्रांड इंटीग्रेशंस करने हैं, या फिर इतने सारे अवार्ड्स के बाद हम एक ब्रांड इंटीग्रेशन करेंगे बिकॉज स्पॉन्सर्स होता है, सो गॉट टू डू द ब्रांड इंटीग्रेशंस एज वेल नाइसली. सो फ्रीडम तो बहुत होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, बट वो स्ट्रक्चर ऊपर नीचे हमेशा होता है. इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ, so far my experience with televised TV award shows is that कि अगर ऊपर नीचे नहीं हुआ then it's a problem. अगर सब जो स्क्रिप्ट में है उस हिसाब से अगर चल रहा है तो you feel कि यार कुछ तो गड़बड़ है. अगर ऊपर नीचे हो रहा है because it's supposed to be, हो सकता है आपका जो स्क्रिप्ट में अवार्ड 1 है, वो विनर जब हम अवार्ड शो चालू कर रहे हैं तब वो मौजूद ही नहीं है, हो सकता है वो लेट आया, तो आप you can't wait till winner want to come, right? तो ऊपर नीचे होना ही है. So you gotta be on your toes as an anchor. ये है आपका फ्रीडम वाला पार्ट. नाउ कमिंग टू द स्क्रिप्टेड वाला पार्ट, whatever award shows that I have hosted till now, I can very proudly say that they have not been scripted in a way where decide ही किया गया कि अगर आप अवार्ड, वो भी होता है, मैं गलत नहीं बोलूँगा, वो होता है, बट ऐसा कभी नहीं हुआ है कि पहले से डिसाइड किया गया कि अगर आप अवार्ड मतलब आओगे
तो ही देंगे, वरना किसी और को दिया जाएगा, यू नो. दैट हैजंट हैपेंड इन द शोज दैट आई हैव डन. What has happened is that कि एक ज्यूरी प्रोसेस होता है to select the winners, एक वोटिंग प्रोसेस होता है from the fans, सोशल मीडिया पे पोल्स होते हैं. Based on that, the winners are decided in advance. ओके. And the winners are told कि आप जीत रहे हो या फिर आप नहीं जीत रहे हो. ओके. तो वो उनको बताया जरूर जाता है, बट ऐसा नहीं होता कि सो इट्स नॉट लाइक कि सब अवार्ड शो पे आ गए उनको तब पता चल रहा है कि वो रिएक्शन जो होता है वो शायद वो थोड़ा सा फॉर द कैमरास करना पड़ता है कि वो आई एम गेटिंग टू नो राइट नाउ कि मैं जीत रहा हूँ. उनको पहले से पता होता है, बट द प्रोसेस इज इटसेल्फ वेरी ऑनेस्ट. द काइंड ऑफ अवार्ड शोज जो शायद आप बात कर रहे हो वो भी होता है टू एन एक्सटेंट. आई हैव नॉट बीन अ पार्ट ऑफ दैट बिकॉज क्रेडिबिलिटी का इशू आ जाता है वहाँ पे. ओके. अगर मैं बात करता हूँ कि जो इवेंट्स होते हैं अभी काफ़ी ज़्यादा एंकर्स आ गए हैं, जैसे आदित्य नारायण है, अर्जुन बिजलानी है, काफ़ी सारे एंकर्स हैं, एक्टर्स बन रहे हैं. आप ये बताओगे कि इतने सारे एंकर्स में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता होगा कि किसको सिलेक्ट करें, क्योंकि ऑब्वियसली अब आपको और अर्जुन बिजलानी को कंपेयर करें तो अर्जुन बिजलानी इज़ बिगर. एब्सोल्युटली. तो उनको सिलेक्ट किया जाता है, एब्सोल्युटली. कभी सिड करण को बुलाया जाता है. तो ऐसे इस मौजूदगी इतनी कंपटीशन में आप कैसे सरवाइव करते हो? अब क्या करना की कोशिश करते हो? देखो, कंपटीशन तो हर जगह है, एंड यू विल ऑलवेज हैव समबडी बिगर देन यू. ठीक है, लाइक द एज एंड एक्सपीरियंस दैट आई ब्रिंग टू द टेबल राइट नाउ. इफ यू टॉक अबाउट एज एंड एक्सपीरियंस, मेरे से ज़्यादा, लाइक यू मेंशन सिद्धार्थ कनन सर. इफ आई टॉक अबाउट एज, एक्सपीरियंस एंड पॉपुलैरिटी, शायद कनन सर से भी ज़्यादा अर्जुन बिजलानी, मुझसे तो ऑफकोर्स ज़्यादा अर्जुन बिजलानी से भी. नाउ इफ यू वांट अ बिगर पॉपुलर फेस, देन आपके अपार शक्ति खुराना, आयुष्मान खुराना एंड ऑल दोस पीपल कम. उनसे भी बड़े चाहिए, देन आपको शाहरुख एंड सलमान ऑफ द वर्ल्ड, दे कम इनटू द सिनेरियो, राइट? तो you will always have somebody more popular than you. The idea is to not think of competition that way. देखो, हर एक ब्रांड का एक रिक्वायरमेंट होता है, एक बजट भी होता है, सब कुछ होता है, बट द आइडिया इज टू फोकस ऑन योर ओन पर्सनल ब्रांड. अगर आप अपना खुद का पर्सनल ब्रांडिंग अच्छे से बिल्ड करते हो, देन देयर इज अ वेरी क्लीन चांस कि शायद हो सकता है कि इफ द पॉपुलैरिटी फैक्टर इज नॉट अ बिग क्राइटेरिया, and अगर आपका स्किल सेट इज मैचिंग विद से अर्जुन बिजलानी, देयर इज अ वेरी पॉसिबल, देयर इज ऑल द पॉसिबिलिटी कि शायद वो शो में करो. बट कभी कभी अगर से वो पॉपुलैरिटी फैक्टर इज अ फैक्टर एंड अ क्राइटेरिया, देन कोई बात नहीं, देन जब मेरा वो होगा तब मैं करूंगा. तो यू गॉट टू बी लिविंग इन द प्रेजेंट, you got to be focusing on your own brand building, you got to be learning from people around you. You cannot be shut with eyes, you cannot have shut eyes and ears कि यार मैं तो मैं ही मैं हूँ, मेरे ऊपर कोई नहीं है, मैं दुनिया का. मैं कितने देखता हूँ, आई मस्ट से दिस, कि एंकर्स बहुत सारे मैं देखता हूँ यार कि अपने सोशल मीडिया पे लिखते हैं, या फिर व्हेन दे पोजीशन देमसेल्व्स विद देयर वीडियोज, या फिर जब क्लाइंट्स को पिच करते हैं, देयर पिच मैचेस सेज दैट do you want the best anchor to host your event and stuff, then your search ends here. I am saying that आप best हो कि नहीं, वो आप क्यों decide कर रहे हो? Let the audience or let your clients decide ना. Till date, whatever events that I have done, I have never pitched myself कि भाई मैं best anchor हूँ, ये हूँ. हालांकि मुझे like एक साल पहले Business World से मुझे 4 awards मिले. Best talk show host Silver, Updated का, most stylish MC of the year वगैरह का. So awards are recognitions, but awards are not the end point. तो अगर किसी reputed magazine को लगता है कि मैं most stylish MC of the year हूँ, I am very grateful to them. But it doesn't have to be ना कि यार उनका opinion the entire country or the entire world agrees to. हो सकता है कोई और ना समझे कि मैं most stylish MC हूँ, हो सकता है मुझसे कोई better समझे. तो अपने आप को best मत बोलो, आप बेस्ट काम अपना खुद का करो. लेट अदर्स से दैट यू आर द बेस्ट. भाई खुद को सेल्फ प्रोक्लेम बेस्ट मत बताओ. ये मैं बहुत लोगों के बायो में भी देखता हूँ कि बेस्ट एंकर ऑफ इंडिया ये करके. आई वुड से इट्स अ वेरी फूलिश थिंग टू डू बिकॉज पीपल कैन सी थ्रू. सो डोंट एंगेज इन दैट थिंग. सो जस्ट फोकस ऑन योर ओन ब्रांड बिल्डिंग. आप खुद को बेस्ट कहने से ऐसा नहीं होगा कि जो आपसे बेहतर है आपको उसका काम अभी मिल जाएगा. आप उस मुकाम पे, उस लेवल पे जब अपने आप को पहुंचाओगे तभी आपको उस इंसान का काम मिलेगा. So just focus on your own self branding and do your work that you are doing, उसी पे focus करो and try कि आप इस साल में जो हो अगले 2-3 साल में उससे थोड़े से better बनो. Automatically you will scale, but खुद को best कहने से वो नहीं होगा. And हमने एक शो पे अभी उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण को भी कहते हुए सुना है कि
यार नेपोटिज्म काफ़ी ज़्यादा लोग बोलते हैं कि नेपोटिज्म हो रहा है, बट उदित नारायण का बेटा आदित्य नारायण भी नेपोटिज्म का ही पार्ट है, Right. बट उसको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है। तो बोल रहा है कि नेपोटिज्म की डार्क साइड्स भी हैं, पॉजिटिव साइड्स भी हैं, बट डार्क साइड्स को लोग नहीं समझते कि उसको भी एंकरिंग ही करना पड़ रहा है, क्योंकि वो इतना अच्छा सिंगर भी है, बट उसको एंकरिंग से स्टार्ट करना पड़ा। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ राघव जुव्याल की, तो उसने भी पहले डांस करा, फिर एंकरिंग करी, अभी मूवीज कर रहा है। Right. तो आपको क्या लगता है कि इतना ज़्यादा नेपोटिज्म होने के बाद भी लोगों को यहाँ से एंकरिंग से अपना बेस बनाना पड़ रहा है, ऐसा क्यों है? देखो, आई वोंट से कि एंकरिंग से बेस बनाना पड़ रहा है. अ लॉट ऑफ पीपल आर बिल्डिंग देयर बेस विद अदर थिंग्स एज वेल. देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी जो लोग एंकरिंग कर रहे हैं, दे आर डूइंग इट बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड इन एंकरिंग एंड नॉट बिकॉज दे वांट टू वेंचर इनटू एक्टिंग. लाइक अगर मैं अपने बारे में बोलूँ, आई एम नॉट हार्डकोर इंटरेस्टेड इन एक्टिंग. अगर कल को जाके कोई मुझे बोलता है कि यार शुभजीत, कोई कास्टिंग डायरेक्टर मेरा दोस्त है, बोलता है कि यार ये एड शूट है, तू आ जा, या फिर ये 1-2 दिन का काम है, आ जा, दैट्स देयर. बट आई डोंट प्लान टू इंटेंड माई एंटायर करियर ऑफ पॉडकास्ट और यूट्यूब बिल्डिंग और इवेंट्स कि कल को जाके मुझे अगर फिल्म मिल जाएगा एक, देन आई विल स्टॉप ऑल दैट. सो पर्सनली मैं अपना खुद का मैं बोल दूं कि आई एम नॉट डूइंग एंकरिंग और होस्टिंग बिकॉज आई वांट टू ट्रांसफर इनटू एक्टिंग. I'll make that very clear on camera. So just like me, there are a lot of other people as well who are doing hosting because they want to do hosting and not because they want to transition into acting. Of course, there are also people who are perhaps getting more opportunities because आप एक TV show host करते हो, आपको popularity मिलता है, then offers start to come. वो अलग बात है. So it's not a direct way. अगर आपको acting करना है, जितना मैं industry को समझता हूँ, hosting करने से आप actor नहीं बन जाओगे. आपको auditions देने पड़ते हैं. You got to build a great network. बहुत important है because आप कितने लोगों को अच्छे से जानते हो, दैट इज वेरी क्रिटिकल इन टर्म्स ऑफ लैंडिंग रोल्स. एंड यू हैव टू बी अ गुड एक्टर इन द फर्स्ट प्लेस. अभी के टाइम पे क्या हो गया है कि बिकॉज इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स देयर, एक रील कल्चर आ गया है, सो लोग रील्स पे एक्टिंग ज्यादा कर रहे हैं, विच इज ऑल्सो फाइन. आप एंटरटेन कर रहे हो, बट आप लार्जर पिक्चर, अब रील के एक्टर से आप वो बड़े पर्दे के एक्टर नहीं बन जाओगे. 1-2 रोल करोगे, उसके बाद फिर गायब हो जाओगे. सो प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट हसल, तब आप एक्टर बनोगे. इट्स नॉट लाइक अ ग्रेजुअल प्रोसेस कि आप एंकरिंग से वो करोगे. सो कमिंग टू द नेपोटिज्म पार्ट, आदित्य नारायण, आई रिमेंबर मैं बहुत छोटा था, सारेगामापा बोल के एक शो आता था, जिसमें आई थिंक आई सॉ आदित्य नारायण होस्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. तो आदित्य तो तब से कर रहा है. उसके बाद ही स्टार्टेड, उसने 1-2 मूवीज भी किए विच अनफॉर्चुनेटली शायद डिड नॉट डू दैट वेल इन द बॉक्स ऑफिस. उसने गाने भी गाए. ही इज डूइंग लाइव कॉन्सर्ट्स नाउ एज वेल. सो आदित्य नारायण काम अपने हिसाब से कर रहा है, बट कभी कभी क्या हो जाता है ना कि द नेम, जिस लेगेसी से आप आते हो, वो इतना बड़ा होता है ना कि समटाइम्स द प्रेशर इज टू मच. एंड ऑफ कोर्स कंपैरिजंस ड्रॉ होते हैं. आदित्य नारायण अगर उदित नारायण जी के बेटे हैं, तो नेचुरली उदित नारायण जी से कंपैरिजंस होंगे. बट एट द एंड ऑफ द डे, आदित्य नारायण जर्नी इज हिज ओन जर्नी. आदित्य नारायण जी कांट गो टू अ स्टूडियो और अ म्यूजिक प्रोड्यूसर एंड से कि भाई मैं उदित नारायण जी का बेटा हूँ, तो मुझे काम दो. वो बोलेगा तू घर जा, ऐसे ही बोलेगा. What are you bringing to the table? So of course nepotism के वजह से या फिर एक certain family background के वजह से एक initial push तो जरूर मिलता है. Okay. अगर compared to that कोई ग्वालियर से एक सिंगर जो जिसका कोई पहचान नहीं है, उसको वो म्यूजिक प्रोड्यूसर तक एक्सेस मिलने के लिए शायद कितना टाइम लग जाएगा. On the contrary से आदित्य नारायण might have direct access because he is a part of that family, right? But eventually आपको accept किया जाता है कि नहीं, is your own skill set, love of the audience, and a huge extent is kismat, luck. So that is the thing, bro. If I want to sum it that way, कि nepotism के वजह से आपको initial push जरूर मिलेगा, and actors have also started to agree on that. पहले शायद नहीं मानते थे, who used to come from nepotism background. Now they realize कि अगर नहीं मानेंगे तो कोई उपाय नहीं है, मानना ही पड़ेगा, which is the true. आपको जरूर मिलता है वो initial push, but उसके बाद आप accepted होते हो कि नहीं is your thing. Look at say जयदीप अहलावत for example, यार मतलब he's doing so well right Fantastic. now. नवाजुद्दीन सिद्दीकी के क्या थे यार उनके, but they're doing, and on the contrary you have some star kids who perhaps are star kids but are perhaps being subject to memes वगैरह for not being that well. तो आप eventually तो यार मतलब किस्मत का भी खेल है, आपका पर्सनल एफर्ट होता है, बहुत कुछ. इट्स अ मिक्स ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड अगर मैं आपकी यूट्यूब जर्नी पे जाता हूँ, तो आपने पॉडकास्टिंग भी स्टार्ट करा है,
आप 2 साल से कर रहे हो पॉडकास्टिंग, आपने सेलिब्रिटीज़ को बुलाया काफ़ी सारे पॉडकास्ट पे, एंड मुझे ये इंसिडेंट याद है कि जब आपके 200 सब्सक्राइबर्स थे तब सुनील शेट्टी सर भी जी, आए थे जी, और आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी मिला है। जी। तो आप बताओगे कि वो आपने कैसे चालू करा? उसमें पॉडकास्टिंग में आपने क्या अप्रोच करा? देखो पॉडकास्टिंग क्या होता है, पॉडकास्टिंग इज अ टर्म राइट नाउ, अ फैंसी टर्म आई वुड से। पॉडकास्टिंग हैज बीन गोइंग ऑन फॉर एजेस। इंटरव्यूइंग ही होता है ना, एक इंटरव्यू अगर 15 मिनट का होता है वो इंटरव्यू कहा जाता है, 1 घंटे के ऊपर हो गया तो उसको पॉडकास्ट कहा जाता है, मैं अगर उसको सिंपल तरीके से देखूँ, राइट। तो पॉडकास्ट इन इंडिया एज अ टर्म, लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट स्टार्टेड बीइंग पॉपुलर आई बिलीव इन इंडिया 2023 ऑनवर्ड्स या फिर 24 ऑनवर्ड्स, जितना मुझे याद है। अभी तो बहुत पीपल हैव कम इनटू द सिनेरियो, बट 24 ऑनवर्ड्स आई फील, जो कि एक रीसेंट स्टडी, एक कोई गूगल स्टडी में भी मैंने देखा था, 2024 onwards was the time podcast culture, people opening their own YouTube channel to interview people, this has started, which is a great thing. But professionally मैं ये चीज़ 2019 से कर रहा था, because I was hosting a talk show for a studio called IWM Studios. तो वहाँ पे मैंने 4 साल, मेरा कॉलेज वगैरह कोलकाता में ख़त्म होने के बाद I shifted and I started doing that talk show for them. 4 साल मैंने वो किया। So I was already in the middle of interviewing people. कोविड के टाइम पे भी मैं वर्चुअली जूम पे इंटरव्यू कर रहा था लोगों को। Okay. अब पॉडकास्ट क्या था, nobody knew about podcast, right? So the core interviewing thing has always been a part of my professional life. Now coming to my own channel, I wanted to focus more on my personal events. तो मैंने सोचा यार कि अगर एक स्टूडियो के साथ आप रहते हो तो उनका भी एक टाइम कमिटमेंट होता है, शायद मैं वो नहीं कर पाऊँ। So I thought कि I'll quit that, and I did quit that in 2023. And I wanted to focus whole and soul on my live events. My friend who also manages my work, Dharmishta, she told me that तुमने इतने सारे contacts बनाए इंडस्ट्री में, relationships बनाए, you're working with Netflix, Jio Hotstar platforms, Z5, T-Series, आपके इतने एक्टर्स के साथ, टीवी एक्टर्स के साथ दोस्ती बोलो या जान पहचान बोलो अगर है, why do you want to let go all of that? तो शी सेड दैट व्हाई डोंट यू स्टार्ट योर ओन यूट्यूब चैनल। Okay. तो मैंने बोला यार मेरे खुद के चैनल पे आएंगे लोग, तब मैं एक ब्रांड के लिए काम करता था, अलग बात था। तो शी सेड कि यार कोशिश तो करके देखो, एंड आई थॉट दैट वेंट वेरी डीप इनटू माय माइंड। तो मैंने सोचा कि यार अगर मेरे कॉन्टैक्ट्स में से 50 लोगों को भी अगर मैं मैसेज करता हूँ, 50 में से शायद 25 पीपल वोंट रिस्पॉन्ड बिकॉज अभी आई एम नॉट एसोसिएटेड विद द ब्रांड, आई एम ट्राइंग टू डू माई ओन थिंग। 25 लोगों में से अगर से 15 लोगों का भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, एंड उसमें से अगर 10 के साथ भी मैं एग्जीक्यूट कर पाऊं, इट्स अ गुड थिंग टू स्टार्ट। गॉड हैज बीन काइंड, द रिलेशनशिप्स दैट आई हैव डेवलप्ड विद पीपल, दैट हैज बीन अ गुड फैक्टर, कि उस वो जो पहले के 8-10 नाम थे ना, उसमें से मुझे बड़े लोगों के साथ कुछ सपोर्ट मिला। लाइक यू मेंशन सुनील शेट्टी सर, जब 200 सब्सक्राइबर्स थे मेरे चैनल पे, ही एंड हिज टीम अग्रीड टू डू एन इंटरव्यू। दे डिड नॉट सी कि यार इसके चैनल में कितने सब्सक्राइबर, दे जस्ट सॉ दैट एक बेटे जैसा लड़का है, कुछ अपना खुद का करना चाहता है, तो लेट्स डू। तो इट इज़ अगेन, मैं मतलब अन्ना सर थैंक यू, अगर आप कभी भी ये वीडियो देखोगे तो आई हैव ऑल द लव एंड ग्रेटिट्यूड फॉर यू, एंड विजय जी एज वेल, ही मैनेजेस सर्स वर्क। तमन्ना भाटिया, अनदर नेम आई वुड लव टू टेक। I remember I was just doing Instagram lives at that point of time before I ventured into YouTube. Tamanna also out of relationship and equation, she agreed. So initial में क्योंकि मुझे 1-2 अच्छे नाम मिल गए, तो the brands also started to take note कि यार ये मतलब Sunil Shetty is a big name, Tamanna is a big name, with 200 subscribers, he's pulling these people, what? And of course I have some wonderful friends around me from the PR community whom I have known, so they also realized कि यार let's support, he can do good stuff. So then धीरे धीरे Disney Hotstar started to work, I started getting shows, integrations with them. Disney Hotstar हो रहा है देख के Jio Cinema started to work. Jio Cinema Disney Hotstar हो रहा है देख के Z5 started to work. Z5 हो रहा है देख के eventually Netflix started to work. So it's been a long process, and I'm still, and I've just started to diversify of late. My main core niche will always be actors and entertainment, but I want to diversify a little bit as well, which is why I've started to invite some different kind of people. जैसे अगर मैं बोलूँ, if I'm allowed to, मधुकर जेंडे बोल के एक इंसान है, ही इज़ अ फॉर्मर ACP ऑफ मुंबई पुलिस। उनके ऊपर एक मूवी भी आया नेटफ्लिक्स में, इंस्पेक्टर जेंडे, जो मनोज बाजपेयी सर ने प्ले किया। तो जो असली मधुकर जेंडे है, ही वॉज देयर ऑन द चैनल। उसके बाद देन आई हैड डी शिवानंदन सर, हु इज द फॉर्मर कमिश्नर ऑफ मुंबई पुलिस। 26/11 के अटैक्स के बाद ही बिकेम द कमिश्नर। ही हैड प्लेड अ बिग रोल इन वाइपिंग द अंडरवर्ल्ड फ्रॉम मुंबई।
Okay. 1998 से 2001 तक ही वाज द जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई. Hmm. तो ही प्लेड अ बिग रोल. अगर आपने किसी ने कंपनी मूवी देखा होगा तो उसमें जो मोहनलाल सर का जो कैरेक्टर है दैट्स बेस्ड ऑन डी शिवानंदन सर. Oh. सो आई हैव जस्ट ऑफ लेट स्टार्टेड टू डाइवर्सिफाई. तो पॉडकास्ट का जर्नी मैं भाई बोलूँ शुरू कैसे हुआ नहीं, इट वाज ऑलवेज देयर. इट्स जस्ट दैट कि वो ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम अ ब्रांड प्लेटफॉर्म टू माय ओन चैनल. एंड देन जब मैंने किया चालू उसके करीब मैंने देखा 7-8 महीने बाद इट स्टार्टेड टू रियली इरप्ट एंड आई एम लविंग इट. एंड जैसे आपने इतनी सारे बताए प्लेटफॉर्म, जैसे डिज्नी हॉटस्टार हो गया, जियो सिनेमा, अब तो जियो स्टार हो गया, हाँ जियो हॉटस्टार हो गया. राइट. एंड उसके बाद नेटफ्लिक्स, Right. आप Z5 के साथ भी काम करा है, तो क्या आपको सिमिलैरिटीज लगी है? ऑब्वियसली पेचेक्स आर डिफरेंट ऑफ ईच ऑफ देम, बट इसमें क्या सिमिलैरिटीज लगी है, क्या डिफरेंशिएशंस लगा है ये सारे प्लेटफॉर्म्स में? देखो पेचेक्स का तो देखो मोर और लेस आपके हिसाब से वो सिमिलैरिटी होता है. बट अगर मैं सिमिलैरिटी के बारे में बोलूँ इन टर्म्स ऑफ वर्क कल्चर, द रीजन दे आर द लीडिंग OTT प्लेटफॉर्म्स ऑफ इंडिया is because of their seriousness towards their work, right from the pre-production stage to the post-production stage to the production stage, of course. Post-production, they are very focused on their marketing campaigns. They're very focused on the kind of people they want to integrate with. They're very focused on building a niche. जैसे I remember एक movie आया था Netflix में recently. Not movie, sorry, it was series. Khaki the Bengal chapter. So got a lot of popularity that series. I of course was in talks with Netflix PR team at that point of time to do that thing. But of course, because I am from Bengal, so मैं भी उनके target list में of creators में था. Because I come from Bengal, I know the people well. Jeetda, he's a big superstar there in Bengal. Right. I have known him as well. So ये जो focused, it's not like कि किसी के पास भी आप जाते हो. There are a lot of shows जहाँ पे मेरे साथ collaboration possible नहीं भी हो पाता. Where I want to, but perhaps they feel that no, you are not the right creator for this show. Well, fair enough. But ये जो focused approach है कि या ये show के लिए he is fitting. It's not like कि एक random list है और उसी को आप repeat किए जा रहे हो. So ये जो focus है, this is what separates them from say the other platform जो भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, but there's a reason why they're the leading OTT platforms, right? Right from the day they package their content to the kind of offers they have for people, they're very consumer friendly and people friendly with whom they're working. ओके. एंड अगर मैं बात करता हूँ सुनील शेट्टी सर का, उसके बारे में बताइए थोड़ा कि ऑफ स्क्रीन तो आपने देखा है, ऑन स्क्रीन हमने देखा है, तो वो क्या डिफरेंसेस है ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन में? देखो ऑन स्क्रीन में बहुत बार he has played macho, angry young man and all. ऑफ स्क्रीन में अगर मैं बोलूँ completely अलग है. ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन. मैं अगर बोलूँ तो very very humble, very very rooted, very very inspiring. एंड जब भी मैं मिलता हूँ, इट्स नॉट दैट कि मैं बहुत फ्रीक्वेंटली मिलता हूँ, यूजुअली काम के सिलसिले में मिलता हूँ, बट जब भी हम लोग मिले हैं ही इज़ ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव. एंड वो आपको महसूस ही नहीं कराएंगे कि भाई मैं सुनील शेट्टी हूँ, मैं इंडिया का इतना बड़ा एक्टर हूँ एंड यू आर अ यंगस्टर हु इज ग्रोइंग एंड ऑल. अगर उन्होंने आपको पसंद किया एंड इफ यू आर इन हिज लिस्ट ऑफ पीपल जिनको वो पसंद करते हैं, देन ही विल डू एवरीथिंग फॉर यू. ही इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. वो जीरो एज अभी भी मैं बोलूँ कि मतलब चलो ठीक है, अभी एक जो व्हाट्सएप में रिप्लाइंग का एक सिलसिला है, यू नो बहुत लोग कर पाते हैं, बहुत लोग मिस आउट हो जाता है, एंड दैट्स फाइन. सर के साथ मैंने देखा है जब भी आई वेदर आई विश्ड हिम ऑन व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे तो चलो नोटिफिकेशन आता है बिकॉज ही फॉलोज मी ऑन इंस्टाग्राम, बट व्हाट्सएप पे भी अगर मैं कभी मैसेज किया, लेट हो चाहे जो भी हो, ही विल ऑलवेज रिस्पॉन्ड. ही विल नॉट बी लाइक कि कोई स्टारी एयर है ही नहीं. एंड आई वोंट जस्ट टॉक अबाउट सुनील शेट्टी सर, the other few people, Sonu Sood sir, Vidya Balan ma'am, Madhur Bhandarkar sir. I mean, I can take quite a few names. Janvi is there, Tamanna is there. I mean, like I mentioned at the very beginning, what I learned from people around me who are successful is their humility, and I think Sunil Shetty sir is right up there in terms of humility. ओके. आप ये बताओगे कि सलमान खान और शाहरुख खान में कौन ज़्यादा बैक स्टेज केओस क्रिएट करता है इवेंट्स वगैरह पे? देखो मैंने सलमान खान और शाहरुख सर सलमान सर दोनों के साथ ही मैंने बैक स्टेज कोई लाइव इवेंट किया नहीं है, विच इज़ टीवी. तो मैं ये चीज़ को लेके बता नहीं सकता, टू बी ऑनेस्ट. हैविंग सेड दैट, केओस इज़ अ वेरी
इट्स अ टर्म जो उस माहौल में उस सिचुएशन पे जब वो प्रेजेंट होते हैं तो वही बता सकते हैं. सो अगर मैंने उन दोनों के साथ काम नहीं किया है तो आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू से कि क्या है. बट द पॉइंट इज कि देखो chaos किसी के साथ भी हो सकता है. एवरीबडी इज अ ह्यूमन एट द एंड ऑफ द डे. सलमान सर की तरफ से भी chaos हो सकता है, शाहरुख सर की तरफ से भी chaos हो सकता है. बट दे आर ऑल प्रोफेशनल्स, दे वर्क वेरी हार्ड एंड उनका डिसिप्लिन इज व्हाट सेपरेट्स देम फ्रॉम. बट आई एम बिकॉज अगर मैं उनके साथ काम किया होता देन आई वुड नॉट हैव गिवन अ डिप्लोमेटिक आंसर. शायद लोगों को लग सकता है मैं डिप्लोमेटिक आंसर दे रहा हूँ बिकॉज आई एम इन द इंडस्ट्री. बट मैंने काम ही नहीं किया तो मैं कैसे बताऊँ ये चीज़. आप ये बताओगे कि आपके करियर में आपने ये बॉलीवुड फाइट देखा है? बॉलीवुड फाइट तो मतलब इर्द गिर्द तो हम लोग ने बहुत देखा है, राइट. मतलब कोल्ड वॉर हो, ये हो, ऐसा भी देखा है मैंने कि शायद एक शो का प्रमोशन हो रहा है एंड द एक्टर्स आर टॉकिंग वेरी नाइसली ऑन कैमरा फॉर द प्रमोशंस विथ ईच अदर एज वेल एंड द मोमेंट कैमराज आर ऑफ एक दूसरे के साथ बात भी नहीं करते. सो आई थिंक द प्रमोशंस इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर एज अ क्लॉज फॉर विद द प्रोडक्शन. तो उसके वजह से करना पड़ रहा है एंड ऐसा होता है. बट आई थिंक दैट ऑल्सो शोज द प्रोफेशनलिज्म, राइट, कि अपने पर्सनल डिसलाइक को वो अपने काम पे नहीं ला रहे. बट ऐसा होता है, बहुत होता है. एंड आप ये बताओगे कि आपने किसी को होस्ट किया एंड वो अंडररेटेड जेंटलमैन है बॉलीवुड इंडस्ट्री का? I don't think so. I have hosted anybody who's underrated that way. देखो लाइव इवेंट्स में तो गेस्ट कौन आएगा वो मेरा कॉल नहीं होता बिकॉज दैट्स ऑलवेज द ब्रांड हु चूजेस कि कौन आएगा. पॉडकास्ट में ऑल्सो आई डोंट थिंक एनीबडी इज अंडररेटेड दैट वे. नो यार, आई डोंट थिंक एनीबडी इज underrated. Of course there are people who deserve a lot more than what they perhaps get. But ऐसा underrated I feel underrated मैं नहीं बोलूँगा. बट वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है. मैं उसका नाम लेना चाहूँगा, पार्थ समथान. ही दैट गाय डिजर्व्स टू बी इन मूवीज यार. उसने टीवी में बहुत अच्छा काम किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. हिज शो कैसी है यारिया इज़ अ बिग हिट अमंग पीपल. आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम. ही इज़ अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन. उसका एक मूवी भी आया था रिसेंटली विद संजय दत्त सर एंड रवीना टंडन मैम, घुड़चड़ी बोल के, विच ओरिजिनली जितना मुझे पता है was supposed to release in cinemas and वो बहुत excited भी था. और अनफॉर्चुनेटली एक ब्रांड कॉल होता है, सो whatever जो भी है, it went to OTT. सो वो जो एक 70 mm का एक जो वो देख रहा था ख्वाब, वो अनफॉर्चुनेटली उस प्रोजेक्ट में हुआ नहीं. बट ही इज बीन देयर फॉर सो लॉन्ग. दैट गाय आई रियली फील, आई वोंट से अंडररेटेड उसके लिए, बट इट डिजर्व्स अ लॉट मोर. ही इज वेरी गुड लुकिंग, चार्मिंग, सीरियस है. रिसेंटली वो CID में भी था एज ACP आयुष्मान. तो अगर मैं एक किसी का नाम लूँगा तो वो पार्थ का होगा. आई रियली फील कि वो बहुत और डिजर्व करता है. आप ये बताओगे कि आपने काफ़ी लोगों को होस्ट करा है, जैसे टीवी एक्टर्स हो गए, सेलिब्रिटीज़ हो गए, तो क्या डिफरेंस है टीवी एक्टर्स और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ में? देखो टीवी एक्टर्स और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ में फ्रॉम द व्यू पॉइंट जिस तरीके से मैं काम करता हूँ कोई डिफरेंस नहीं है. डिफरेंस बनाते शायद प्रोडक्शन हाउसेस या फिर एक स्टीरियोटाइप हो जाता है कि यार टीवी एक्टर को मूवी में कास्ट नहीं करेंगे, जो कि एग्जिस्ट करता है अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडस्ट्री में. क्या टीवी एक्टर है, उसको कहाँ से लो. बट टीवी एक्टर्स आर सो फ्रीकिंग हार्ड वर्किंग. 12 to 14 आवर्स इन अ डे कभी कभी वो देते हैं ऑन द सेम सेट. कोई महीने में शायद अगर मैं बोलूँ 20-22 दिन शूट करते हैं. I don't think movie schedules are always so rigorous, but TV शो चलते ही रहते. It's a longer, it's daily soap, right? Episodes का एक stress होता है. There sometimes they shoot on Sundays as well. Movies में OTT में I would say comparatively थोड़ा सा ज़्यादा flexibility होता है, जितना मैं समझता हूँ, जितना मैंने सुना है लोगों से who work. तो TV actors का तो मैं बोलता हूँ कि यार और ज़्यादा respect करना चाहिए for the kind of schedule that they work. बट अनफॉर्चुनेटली एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है इंडस्ट्री में कि टीवी एक्टर्स को मूवी में एज अ लीड नहीं कर सकते. बट ऑफ कोर्स सम पीपल हैव ब्रोकन द बैरियर्स. यू से विक्रांत मसे फॉर एग्जांपल, मृणाल ठाकुर को रिसेंटली बहुत अनफॉर्चुनेटली ट्रोल किया गया रिगार्डिंग दैट बिपाशा बासु थिंग. आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर ऑफ दैट और नॉट. ठीक है जो भी है, बट आई फील इट्स वेरी अनफेयर. मतलब मैं मृणाल को जानता हूं, बहुत ज़्यादा पुराना वीडियो बहुत था. ज़्यादा. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि with time, with experience, with fame, people learn to handle that as well, right? So it's very unfair कि मृणाल के आप उतने पुराने वीडियो को आज अब यूज़ कर रहे हो उसके खिलाफ. The kind of trolling that I have seen against her on social media, मतलब मैं खुद परेशान हो गया.
तो जिसके साथ वो हो रहा है वो तो मतलब आई डोंट नो हाउ शी इज हैंडल, शी इज अ वेरी ब्रेव गर्ल दैट वे, जितना मैं जानता हूँ उसको, तो यार मतलब but she's a success example, right? TV actor, she was also a TV actor, she made it successfully. Vikrant Massey you see doing so well. uh, there are examples. So ऐसा कोई डिफरेंस तो नहीं है इन टर्म्स ऑफ, ये वो डिफरेंस लोग बनाते हैं प्रोडक्शन हाउसेस एक्सेट्रा कि यार टीवी एक्टर ये, अल्टीमेटली मैं तो एक्टर के रूप से ही देखता हूँ. सो मेनी पीपल आई नो जो एक्टर है, आज टीवी शो कर रहा है, कल को जाके रियलिटी शो करेगा, कल को जाके मूवी करेगा ओटीटी का. मेरे नजरिए में तो एक्टर ही है ना. मेरे नजरिए में नहीं अरे यार एक टीवी एक्टर आ रहा है मेरे पॉडकास्ट पे, नहीं आज एक मूवी एक्टर आ रहा है मेरे. आई डोंट लुक एट इट दैट वे. प्रोडक्शन हाउसेस हु कास्ट, दे लुक एट इट दैट वे, एंड दैट इज व्हाई द डिफरेंस इज देयर. वेरी अनफॉर्चुनेट डिफरेंस. अगर कोई प्रोडक्शन हाउस वाले देख रहे, प्लीज ये बंद करो, बिकॉज कास्ट पीपल बेस्ड ऑन देयर टैलेंट. आई डोंट सी दैट टीवी एक्टर एंड ऑल टाइप, इट्स वेरी आउटडेटेड. एंड आपको लगता है कि आपने एंकरिंग वगैरह इतनी सारी करी है, तो आप ये बताओगे कि एक कोई सेलिब्रिटी जिसका डिवा बिहेवियर था? Diva behavior, I can't think of diva behavior that way, but क्या होता है ना कि often when you're shooting with people, celebs के आसपास उनके teams रहते हैं, makeup team, hair team, ये team. So sometimes even if they are not concerned, उनके मेकअप एंड हेयर आर्टिस्ट इतने ज़्यादा, वो एक कहावत है ना, चाय से ज़्यादा केतली गर्म है. So वही होता है कि even if the actor is perhaps sure कि नहीं मैं तो ठीक ही लग रही हूँ, आई डोंट केयर द हेयर, उनको भी डर लगता होगा कि यार अगर कुछ ऑन स्क्रीन कैमरा में अच्छा नहीं लगा तो शायद उनको डांट पड़ेगा, वो भी होता होगा. बट ऑफन आई सी कि लाइक जो अगर मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ कोई इंटरप्शन हो रहा है, द हेयर एंड मेकअप टीम आर कमिंग, दे आर फिक्सिंग द हेयर एंड ऑल. एक्टर ने नहीं बोला, बट वो कर रहे कि ये फिक्स करो, ये करो, वो करो. सो आई डोंट थिंक एनीबडी हैज हैड दैट काइंड ऑफ अ डीवा बिहेवियर इन माय केस. यार मतलब मैंने तो नहीं देखा किसी के साथ ऐसा. एंड अगर मैं बात करता हूँ कि आप जब एंकरिंग करते हो तो वार्डरोब मैल फंक्शन भी देखा है हमने कि ये आजकल होने लगा है, माइक ड्रॉप्स भी देखा है, तो उसके बारे में बताओगे कि ऐसा कोई इंसिडेंट आपके दिमाग में है? मैंने अगेन वार्डरोब मैल फंक्शन रिलेटेड ऑल्सो मैंने कुछ मेरे अवार्ड शोज में जो मैंने होस्ट किया है मैंने कभी नहीं देखा. मैंने अगर मैं खुद भी जो इवेंट्स होस्ट करता हूँ, मेरे खुद के साथ भी कभी अभी तक हुआ नहीं ऐसा. तो आई डोंट थिंक दैट हैज एवर बीन अ सिचुएशन. एंड जैसे हमने अक्षय सर को देखा है, काफ़ी ज़्यादा प्रैंक करते हैं स्टेज पे, ऑफ स्टेज. तो ऐसे कोई एक्टर से, सेलेब से मिले हो जो काफ़ी ज़्यादा प्रैंक करते हैं, नॉटी बिहेवियर हो, जैसे रणबीर कपूर का होता है. रणबीर कपूर ने कपिल शर्मा पे किया था, काफ़ी ज़्यादा प्रैंक किया था अनुष्का के साथ. तो वैसा आपने देखा है कि ऐसा कोई सेलिब्रिटी है जो ऐसे नॉटी है बट मज़ा आता है? देखो अक्षय सर का नाम आपने लिया, अक्षय सर व्हेनेवर आई हैव मेट ही इज ऑलवेज लाइक दैट, वेरी फन, जोवियल, अमेजिंग टू बी अराउंड. सुनील शेट्टी सर हैज गॉट अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, वो मस्ती मजाक करते हैं, वेरी वेरी वैकी सेंस ऑफ ह्यूमर. विद्या मैम, फिर आई थिंक एवरीबडी हु वर्क्स ना एक दिल और जान के साथ काम करते, तो वो वैकी सेंस ऑफ ह्यूमर तो सबका ही रहता है. बट आई थिंक पीपल एंजॉय लाइफ, पीपल एंजॉय द स्लाइस ऑफ लाइफ. सो उसके वजह से दैट इज ऑलवेज देयर कि ऐसा हंसी मजाक वाला. आई यू रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ हंसी मजाक या फिर इन जनरल? हाँ, इन जनरल में तो लाइक आई सेड दैट एवरीबडी मोर और लेस, अनटिल अनलेस कोई बहुत सीनियर हो, मैंने तो अभी तक नहीं देखा, बिकॉज एवरीबडी इज एंजॉयिंग देयर वर्क, लाइफ, पॉपुलैरिटी, मनी, फेम, सब अच्छे जोन में ही रहते. एंड आपने इतना ज़्यादा पॉडकास्ट लिया है, तो आप ये बताओगे कि सेलेब में जो सबसे ज़्यादा आपको ऑनेस्ट लगे, कि देख के आपको पता लग जाता है ना कि ऑन स्टेज और ऑफ स्टेज इसका कैरेक्टरिस्टिक सेम है, कि ये बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, जैसे हम पंकज त्रिपाठी को देखते हैं, तो वैसा बिहेवियर आपको लगा किसी का? देखो I'll be very honest with you in this thing. The very reason why I started to diversify a little bit beyond actors is because I wanted real conversations. The reason I got a Madhukar Zende sir or D. Sivanandan sir form, because actors का क्या होता है ना, beyond a certain point वो खुल नहीं पाते on camera. Okay. Of course अगर आपके साथ personal relationship है, दोस्ती आ रही है, they will still open up, but still they will have that fear कि यार लोग क्या कहेंगे, which is very normal because अभी social media trolling का इतना ज़माना हो गया है, तो वो सोचना बनता है. सो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी उनको अनफिल्टर्ड पूछोगे तो वो बता देंगे ऑनेस्ट होके. हो सकता है आपको ऑफ कैमरा बहुत कुछ बताए, एंड बताते भी है, बट ऑन कैमरा बिकॉज ऑफ द रैमिफिकेशंस दैट कैन कम वो नहीं बताएंगे, विच इज़ नॉर्मल, आई अंडरस्टैंड दैट.
बट ऑनेस्टी के बारे में अगर मैं बोलूँ तो आई थिंक माधवन सर, I feel he talks straight from the heart. I think with whom he's somebody whose name I can take. सुनील शेट्टी सर मैं बोलूँगा ज़रूर. मैं बार बार सुनील सर का नाम ले रहा हूँ, but I mean if he fits all the criteria, then I have to take his name, right? Vidya ma'am also talks from the heart. I think the way she has always been very open about her weight loss transformation से लेके सब कुछ, the kind of trolling, वो दिल से बात करती है, वो समझ में भी आता है. You know, I think Sushmita Sen ma'am, I have to talk about her. I had the opportunity to shoot an interview with her during Arya, and that was, I think, just a little later after her heart attack. Okay. So she spoke about her heart attack as well. मतलब no filters attached. मतलब जैसी है on screen, on camera, off screen भी वैसी ही है. तो मतलब I would say कि these are some real authentic organic people. ऐसे भी लोग हैं जो completely different है on camera and completely different है off camera with you. Okay. जो मैं समझता हूँ कि शायद सिर्फ काम टू काम मतलब रखते, तो हम भी उनसे काम टू काम ही मतलब रखते, बियॉन्ड वर्क कोई रिलेशनशिप नहीं बनाते. एंड अगर मैं बात करता हूँ कि अब मैं जानना चाहता हूँ डार्क साइड ऑफ बॉलीवुड, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसा हुआ है कि बॉलीवुड में डार्क साइड देखने को मिला है. आप सुशांत सिंह राजपूत की डेथ बोल लो, उन्होंने ये बोला है कि फ्रेंड्स नहीं थे, कोई फ्रेंड्स नहीं है. बहुत जगह हमें सुनने मिला है कि यार फ्रेंड्स नहीं बनते इस इंडस्ट्री में. राइट. तो आपको लगता है ये सच है? क्योंकि आपने इतने सारे लोगों का इंटरव्यू ले रखा है, इतने सारे लोगों को होस्ट कर रखा है, तो उनके क्या व्यूज़ है? देखो दोस्त तो आई वोंट से कि दोस्त नहीं बनते, बट मोस्ट ऑफ द फ्रेंडशिप्स मैं बोलूँगा ट्रांजैक्शनल, कि यार मैं तेरे लिए ये कर रहा हूँ, कल को जाके टू एन एक्सटेंट एक्सपेक्टेशन रहेगा तू मेरे लिए ये करेगा. ऐसे वाले दोस्ती बहुत है. कंप्लीट ऑर्गेनिक फ्रेंडशिप भी है, बट ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ लोनलीनेस इन द इंडस्ट्री, बिकॉज इतने अनसर्टिनिटीज के साथ आप डील कर रहे होते हो, तो आपको पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला एक्सेट्रा. तो एक लोनली चीज़ तो है. जेलसी भी बहुत होता है लोगों में, अरे यार उसका मूवी कैसे चल गया, मेरा नहीं चला. लोग दिखाएंगे नहीं, हो सकता है ऐसा भी. मैंने मतलब आई नो ऑफ पीपल जो मुझे इंटरनली पता है कि ये इंसान उसको पसंद नहीं करता, बट जब उसका मूवी आ रहा है तो उसके लिए इंस्टा पे स्टोरी डाल रहा है, वाओ वेल गुड जॉब डन एक्सेट्रा. तो देयर इज अ लॉट ऑफ फेकनेस इन्वॉल्व. मैं झूठ नहीं बोलूँगा, देयर इज अ लॉट ऑफ फेकनेस इन्वॉल्व, बट दैट्स नॉट द होल साइड. उसको आप बॉलीवुड या एंटरटेनमेंट को कंप्लीटली फेक बोल के डिसमिस नहीं कर सकते. वो तो हर इंडस्ट्री में होता है, बट वो भी एक चीज़ है बिकॉज ऑफ योर सर्वाइवल. आपको टिकना है, सबके साथ रिश्ता बना के चलना है. देयर इज अ लॉट ऑफ फेकनेस इन्वॉल्व. सबके साथ दोस्ती पॉसिबल नहीं है. डार्क साइड ऑफ बॉलीवुड में यही कहूँगा, या फिर डार्क साइड ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में यही कहूँगा कि पीपल फील वेरी वेरी लोनली बिकॉज ऑफ कभी कभी नेगेटिव कैंपेन्स चलाए जाते, PR कैंपेन्स जो होते, समटाइम्स दे आर वेरी डेडली. हो सकता है एक्टर को कभी कभी पता ना हो, बट उसका PR टीम क्या कर रहा है, किसी दूसरे एक्टर को गिराने के लिए पेड आर्टिकल्स कराते, ये कराते, बहुत कुछ होता है. ऑल दिस थिंग्स indirectly take a toll on the mind, right? Of course, आप कितना देखोगे अपने बारे में, कंपेयर किसी और को नीचे गिरा के. सो मैं यही मानता हूँ कि कोई भी हो, PR टीम हो या कोई भी हो, आप अपने क्लाइंट को उठाने के लिए आप अपने क्लाइंट को उठाओ, आप दूसरों को गिराओ मत. इफ यू वांट टू अपलिफ्ट योर ओन क्लाइंट, अपलिफ्ट योर ओन क्लाइंट. उनको काम कराओ, उनको अच्छे से मेहनत कराओ, यू डू योर ओन थिंग, बट आप किसी और को नीचे मत गिराओ. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये सब होता है, एंड पीपल गेट इनटू एडिक्शन एंड ऑल दैट. आई मीन there have been cases of drug addiction, smoking तो चलो ठीक है, नॉर्मल है, अल्कोहल एडिक्शन वगैरह एक्सेट्रा, तो होता है. एंड देन पीपल फॉल अपार्ट. मतलब करियर्स के जो एक फोकस रहता है डिरेल हो जाते हैं. द वंस हु हैव मेड इट आर द वंस जो जितने भी डिस्ट्रैक्शन हो, नेगेटिविटीज हो, सबको साइड में रख के अपना जो लक्ष्य है उस पर फोकस करके आगे बढ़े, बिकॉज ये तो रहेगा ही. एंड हमने काफ़ी ज़्यादा स्टोरी सुनी है कि ड्रग्स चल रहा है, ये सारी चीज़ें ले रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ ले रहे हैं. मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा एक्टर्स का, बट हमने देखा है, लोगों को भी पता है कि ये होता है. तो आप उस पर क्या बोलोगे कि ये, क्योंकि बॉलीवुड ऐसा ग्लैमरस इंडस्ट्री है, क्योंकि कॉमन मैन फॉलो करेगा बॉलीवुड को, बिल्कुल. तो कॉमन मैन पे तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, वो जो लोग जो कर रहे हैं. करेक्ट. देखो मैं ये चीज़ बोलूँगा कि 100% अगर मैं इसको बॉलीवुड या मैं इंसान के तरीके से अगर देखूं, एक इंसान जो एक 9 to 5 का कॉर्पोरेट जॉब कर रहा है, आई नो वैसे लोगों को भी जो शायद वीड, दारू, गांजा ये सब लेते, एंड आई नो बॉलीवुड का एक्टर भी
जो शायद ऐसा करते होंगे. Point is कि you gotta be, if you are in a position of power, if you are in a position of influence, and अगर आपको देख के लोग फॉलो करेंगे सबको, you cannot be popular and आप कुछ भी करोगे ये सोच के कि नहीं मैं तो मेरा कुछ का कर रहा हूँ, लोगों को फॉलो करना है तो वो करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे. यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि इस देश में अगर आप पॉपुलर हो, आपने खुद का एक नाम बनाया, पहचान बनाया है, देन आपको एक सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको फॉलो करना चाहिए, राइट? So many actors I know which do that. They smoke, but on camera they'll ensure that because they don't want to let out the thing out कि यार हमारे biggest of actors they're smoking, so smoking is cool. Perhaps they're not able to get rid of that addiction, but they're very responsible that way. Drugs का जो है consumption देखो, drugs बोलो, alcohol बोलो, करते पीठ पीछे पर्सनल स्पेस में कौन क्या कर रहे हैं देखो, मैं किसी के घर में घुस के तो नहीं बोल सकता, बट मैं डेफिनेटली ये नहीं कह सकता लाइक अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव सेड ट्राइड टू क्लीन बॉलीवुड कि नहीं यार ये गलत बात है, हमारी इंडस्ट्री में बिल्कुल नहीं होता. मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा, ज़रूर होता होगा. आई एम श्योर देयर मस्ट बी रेव पार्टीज एंड ऑल हैपनिंग, देयर मस्ट बी पर्सनल पार्टीज जहाँ पे वीट एक्सेट्रा कंज्यूम किया जाता होगा. आई एम श्योर दैट मस्ट बी हैपनिंग. आई कांट टेक नेम्स बिकॉज मुझे पता नहीं है, बट आई एम सेइंग दिस होता होगा बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल्स. जैसे आई नो पीपल ड्यूरिंग माई कॉलेज टाइम जो शायद लेते थे, ऐसे कंज्यूम करते थे, ड्रग्स लेते थे, तो वो भी इंसान है, ये भी इंसान है. इट्स जस्ट दैट दे आर मच मोर ग्लोरिफाइड बिकॉज ऑफ द प्रोफेशन. तो मैं तो ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि बिल्कुल नहीं होता, बट ये भी गलत परसेप्शन है कि सब लोग करते, या फिर जो भी इस इंडस्ट्री में आने चाहेगा वो उसको ऐसे ही करना पड़ेगा. लाइक आई पर्सनली डोंट ड्रिंक. ऑल माई फ्रेंड्स, ऑल माई पीपल, एवरीबडी नोज आई डोंट ड्रिंक. व्हेनेवर आई गो टू अ पार्टी जहाँ पे आई नो फुल ऑन ऐसे शराब है, ये है, there is nothing called peer pressure or social drink. आप करते हो तभी जब आपको करना होता है अंदर ही अंदर. So many people have offered me over a period of time. नहीं लेता. I take a mocktail. I am happy doing cheers with them. कौन प्रेशर डाल सकता है? गन पॉइंट तो नहीं रखना है ना कोई. तो ये बहुत गलत चीज़ है जो लोग बोलते हैं कि ना पीयर प्रेशर में हमने पीना चालू कर दिया. कुछ नहीं होता पीयर प्रेशर, ये बकवास है. You decide your own thing. आपको खुद को मन करेगा तब जाके आप करते हो. So it's wrong to put it on peer pressure. Similarly with drug addiction or anything. अगर आप करते हो आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते कि यार उसने मुझे करा दिया. आपको इंटरेस्ट था तभी जाके आप गए ना. मेरे इर्द गिर्द भी मैंने कितने लोग देखे, वो आई नो आर इनटू ऑल दैट, बट मुझे नहीं करना था, मैं नहीं हूँ. सिंपल. तो आप ये बताओगे कि अजय देवगन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार सब ने विमल का ऐड किया था, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग हुई. अक्षय कुमार ने बोला कि यार अब मैं नेक्स्ट टेन्योर नहीं करूँगा, इस टेन्योर तो मैंने कर लिया है अब. तो अक्षय कुमार ने ही सिर्फ बोला कि हाँ मैं नहीं करूँगा. बाकी एक्टर्स आपको क्यों लगता है कि वो कर रहे थे वो एड्स, उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है? क्योंकि विमल के लिए अजय देवगन की काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग हुई. अब लोग ऐसे करते हैं तो अजय देवगन का बताते हैं कि ये अजय देवगन है. तो आपको क्यों लगता है कि एक्टर्स नहीं सुनते कभी कभार, या उनको फ़र्क नहीं पड़ता? देखो फ़र्क नहीं पड़ता, आई एम नॉट श्योर इज़ राइट थिंग टू से और नॉट. अजय सर हो, शाहरुख सर हो, अक्षय सर हो, जो भी हो, दे आर ऑल रिस्पॉन्सिबल पीपल एंड उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं. हो सकता है मेरे आइडियोलॉजी के साथ वो मैच ना करे या किसी और के साथ आपके आइडियोलॉजी के साथ वो मैच ना करे, बट एट द एंड ऑफ द डे वो एक एडवर्टीजमेंट है. अगर सी देयर आर 50 एडवर्टाइजमेंट, जैसे शाहरुख खान जी का ही मैं अगर एग्जांपल लूँ, एक समय पे वो शाहरुख खान जी Hyundai के कार्स का भी ऐड करते थे, राइट? तो जस्ट बिकॉज शाहरुख खान जी Hyundai का कार्स का ऐड करते थे, डिडंट मीन कि सब लोग ब्लाइंडली Hyundai के गाड़ी खरीद रहे, राइट? पीपल चोज देयर ओन ब्रांड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. अगर Hyundai लेना था तो ही Hyundai लेते थे, नहीं Hyundai लेना था तो नहीं लेते थे. जस्ट बिकॉज SRK इज डूइंग नहीं लेते थे, राइट? सो एक्टर्स एंड स्टार्स ऑल्सो रियलाइज कि हम एज अ प्रोफेशनल कैंपेन अगर कुछ कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे जिसको वो करना होगा वही करेगा, जिसको नहीं करना होगा वो नहीं करेगा. So it is always an individual's choice. Talking about saying yes to a pan masala ad is also something which is a very individual choice. अगर शाहरुख सर, अजय सर, अक्षय सर, they thought कि you know we can indulge in this ad, that was an individual choice. मैं उस पर personally उन्होंने क्या सोच के किया मैं वो comment नहीं कर सकता. उन तीनों में से अक्षय सर ने जैसा कि आपने बोला ऐसा कुछ कहा था, that is also his individual reflection of his work, right? तो उनको वो करने के बाद लगा कि नहीं यार गलत है, शायद नहीं करना चाहिए. दैट इज ऑल्सो अगेन हिज इंडिविजुअल थॉट. सम पीपल रेजोनेट विद दैट, सम पीपल डोंट. परहैप्स यू रेजोनेट विद दैट, यू मेंशन्ड, सम पीपल डोंट. सो पॉइंट यही है कि
while actors do exert an influence, ऐसा है ही नहीं कि जो भी एक्टर्स कर रहे हैं वो हमेशा एक्टर ये अक्षय कुमार जी अगर मैं बोलूँ तो एक सफाई अभियान का भी कुछ तो करते थे, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। राइट। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सब लोग सफाई अभियान फॉलो करके सब लोग अभी रास्ते पे दे आर फोकसिंग ऑन क्लीनलीनेस। जिसको साफ सफाई करना होगा वही कर रहा है, जिसको नहीं करना होगा वो नहीं कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज दे आर डूइंग हम लोग को प्लेन एंड सिंपल सी एक्टर्स एंड सेलिब्रिटीज आर समटाइम्स अ सॉफ्ट टारगेट। हैव टू अंडरस्टैंड दैट बिकॉज उनको टारगेट करके भी एक उनके फेम को एक कैपिटलाइज किया जा सकता है, राइट, विच इज ट्रू। सब करते हैं, नेचुरल बात है। दे डोंट गिव यू नो अ डैम अबाउट इट। सो उन्होंने क्या सोच के किया होगा इज समथिंग, बट ऑफकोर्स एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो है। नॉट एवरीबडी अग्रीज विद दैट कि नहीं करना चाहिए। अ सर्टेन सेक्शन, अ मेजर सेक्शन शायद डिसएग्री करता होगा कि शायद उनको नहीं करना चाहिए था। सो जस्ट लाइक उनका ओपिनियन इज रिस्पेक्टेड कि उनको करना चाहिए था, जिनका ओपिनियन है कि नहीं उनको नहीं करना चाहिए था, आई रिस्पेक्ट देयर ओपिनियन एज वेल। एंड कभी आपके साथ हुआ है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की है पीआर टीम ने? एक इंटरव्यू में आप सेलेब के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं एंड उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की। बहुत 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 बार ऐसा हो। सो इसमें भी क्या क्या होता है ना, देखो अगर मैं कोई शो के प्रमोशन के लिए किसी प्लेटफॉर्म के पास जा रहा हूँ and it's not my personal planned podcast, then I have to ensure that I promote the show very nicely as well. I can't bring in a lot of personal questions over there, but वो मुझे PR टीम को मुझे बताने की जरूरत नहीं, वो मेरा खुद का सेंस है। Tomorrow if say Netflix calls me for promoting their show, I will not go to the actor and ask about their love life. I will talk to them about the show because Netflix has arranged that situation for me to come and promote this show, and they've created that space of actors, right, and access to the actors, right? So I have to respect that. But a lot of times when personal interviews वगैरह में there are PRs who try to control a lot, हमें सवाल भेजो, ये भेजो। आज तक मैंने किसी को सवाल नहीं भेजा। कभी कभी लगता है I share with them certain pointers कि these are the lines of by based on which मुझे conversation करना है। इसके beyond मैं नहीं जाऊँगा। मैं कभी कभी वो गारंटी भी देता हूँ। समटाइम्स अगर कोई मेजर कंट्रोवर्सी हुआ है एंड दे वांट टू एंश्योर कि हम उस चीज़ को लेके सवाल ना पूछे, तो वो हमें पहले से थोड़ा बताया जाता है कि प्लीज़ इस चीज़ को लेकर ना पूछना। इफ़ आई पर्सनली अग्री विद देम, मुझे लगता है कि नहीं अगर मैं उस चीज़ को लेके पूछूंगा तो वो पुराने कंट्रोवर्सी पे और ज़्यादा आग लगेगा, इट माइट हैम्पर द एक्टर, तो वो आउट ऑफ ह्यूमन लेवल मैं सुनता हूँ। बट अगर मुझे लगता है कि नहीं ऐसे ही बोल रहा है अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपना बचाने के लिए, बट उसमें मेरा कुछ लेना देना है ही नहीं या फिर एक्टर का भी कुछ लेना देना, देन आई डोंट लिसन। एंड मैंने आज तक, आई कैन पुट इट ऑन कैमरा, सो मेनी पीआर्स हैव आस्क्ड मी कि आप क्वेश्चंस का सेट भेजो। मैंने जिंदगी में कभी भी किसी को नहीं भेजा एंड मैं ना किसी को भेजूंगा। आगे भी मुझसे मांगोगे मैं नहीं दूंगा आप। एंड सो मेनी टाइम्स आई मिस्ड आउट ऑन इंटरव्यूज ऑन दैट रीजन एज वेल, बट इट्स फाइन, कोई बात नहीं। बट आई कांट मतलब ऐसे मैं सी आई एम वर्किंग फॉर माई सेल्फ, आई एम नॉट वर्किंग फॉर दैट पीआर ना। तो मैं उसमें भी एक टोन होता है। अगर कोई रिक्वेस्ट करता है मुझे कि देखो शुभजीत ऐसे है संभाल लेना, सी मैं ना बहुत इमोशनल आदमी हूँ, मैं ये सब चीज़ों को लेके मैं सुनता। अगर कोई मुझे रिक्वेस्ट करके बोलेगा ना, आर्टिस्ट इन जनरल, परेश रावल सर ने एक बात बोला था कुछ दिन पहले, आई थिंक लल्लन टॉप या किसी एक के पॉडकास्ट में, कि आर्टिस्ट का दिल जो होता है ना वो बहुत इमोशनल वाला होता है, ऐसा कुछ तो उन्होंने बोला था। अगर आप प्यार से बोलोगे ना, वो आपके लिए बिना पैसे लेके भी कर देगा, कम पैसे लेके भी कर देगा। और अगर चौड़ में बोलोगे ना तो वो मतलब करेगा ही नहीं। तो मैं भी थोड़ा सा वैसा ही हूँ। इफ समबडी कम्स टू मी इन अ रिस्पेक्टफुल एंड यू नो प्लीजिंग टोन, देन मैं कभी कभी सुनता हूँ। अदरवाइज अगर चौड़ में डिमांडिंग टोन में बोलता है, मैं बोला घर जाओ। ये एंकरिंग काफ़ी टाइम से कर रहे हो, तो इसमें ये बिजनेस काफ़ी हार्ड होता है। आप ये बताओगे कि हाउ हैज़ इट अफेक्टेड योर पर्सनल रिलेशनशिप्स? कोई पार्टनर वगैरह है? पार्टनर तो देखो है, बट इट हैज़ नॉट अफेक्टेड माई पर्सनल रिलेशनशिप्स इन एनी वे। ओके। बिकॉज एक तो लाइक आई मेंशन, मैं उसको आई कंसिडर हर अ पार्ट ऑफ माई फैमिली इटसेल्फ, ऑल्दो ऑफिशियली नहीं हुआ है। बट माई फैमिली इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स माई वर्क, माई पार्टनर इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स माई वर्क, एंड I know how to prioritize and do my best to balance both. So always हमेशा possible नहीं हो। My first priority will always remain family and work together at the same time. मेरे लिए ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर है, मेरे लिए दोनों पैरेलल है। कभी कभी फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी जाता है, काम कैन टेक अ बैक सीट। कभी कभी वर्क ऑल्सो हैज़ टू गो फ्रंट एंड फैमिली ऑल्सो हैज़ टू टेक अ बैक सीट। ओके। फॉर मी इट इज़ लाइक दैट। सो मेरे लिए ऐसा नहीं है कि फैमिली ऊपर है काम ऊपर नीचे है, या फिर काम ऊपर है फैमिली नीचे। मेरे लिए इट्स एट द सेम टाइम। तो
समझने वाले लोग हैं मेरे अराउंड, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, बट आई ऑल्सो रिस्पेक्ट दैट फैक्ट, मैं टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेता. माई पेरेंट्स लिव इन कोलकाता. Whenever I get an opportunity, I go over there. Be it मेरा काम होता है वहाँ पे, अभी दुर्गा पूजा के लिए also I will be going over there. So I'll spend some time with them over there. यहाँ पे I have my partner in Mumbai. उनका अलग काम है, मेरा अलग काम है. I sometimes travel for work outside. जो भी होता है, but काम करता हूँ. ये whatever best that we can do, we do. आप ये बताओगे कि आपकी मुलाकात कैसे हुई थी उनसे? I met her basically at one of जो मैं जिस स्टूडियो के लिए पहले टॉक शो होस्ट करता था, उनका जो ऑफिस होता था, इट यूज्ड टू बी अ कॉमन को-वर्किंग स्पेस. ओके तो उसी जगह पे उनका भी ऑफिस होता था. ओके. सो दैट वी हैड कॉमन फ्रेंड्स, हम लोग मिले, दोस्त बने, एक्सेट्रा, एंड देन थिंग्स स्टार्टेड. सो अभी हमारे फैमिलीज को भी पता है एक दूसरे के बारे में. सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. एंड अगर मैं एंकर्स की बात करता हूँ तो उनको क्या क्या ट्रेट्स चाहिए होता है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो मैं बोलूँगा कि कम्युनिकेशन स्किल. एंड कम्युनिकेशन स्किल में भी सिर्फ बातचीत करना इज नॉट कम्युनिकेशन स्किल. यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन ब्रिंग अ पर्सनल टच टू द कॉन्वर्सेशन, राइट. आपको हमेशा ये आना चाहिए कि आप आपके आसपास के लोगों को कैसे ज़्यादा स्पेशल फील कराओ, इम्पॉर्टेंट फील कराओ. एंड यू नीड टू नो हाउ टू यूज़ योर वॉइस. अगर मैं पहले मैं एक काम करता हूँ, एट्रीब्यूट्स का बात करूँ, देन आई विल कम टू स्पेसिफिक स्किल सेट्स. वॉइस वगैरह उसमें आता है. आई थिंक द इंटरपर्सनल स्किल्स वुड बी कि अच्छे से बातचीत, मेक देम फील वार्म एंड कंफर्टेबल अराउंड यू, चाहे वो लाइव इवेंट हो या कुछ भी हो. एंड ऑलवेज बी वेरी वेरी हम्बल. अगर आपका हम्बलनेस ऑन अ यूजुअल नोट एंड ह्यूमिलिटी इज ओवर हियर, देन व्हेन यू आर ऑन स्टेज और व्हेन यू आर होस्टिंग अ पॉडकास्ट, योर हम्बलनेस शुड बी हियर. काफ़ी टाइम लोग अपसेट हो जाते हैं कि यार एंकर कुछ भी बोल रहा है, यू नो, या फिर होस्ट कुछ भी बोल रहा है. नो, यू शुड बी वेरी हम्बल. ऑलवेज द अदर पर्सन अराउंड यू इज मोर प्रायोरिटी. यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अगर मैं मेरे टॉक शो में लोगों को बुलाता हूँ, आई एम नॉट ऑब्सेस्ड विद माई सेल्फ कि मैं दिखूँ. यार मेरे चैनल पे लोग उनको देखने आ रहे हैं, मैं कौन ही हूँ. सो ऑलवेज गिव द अदर पीपल मोर इम्पोर्टेंस. ऑलवेज बिल्ड अ स्पेसिफिक कंफर्ट जोन अराउंड यू. आप लाइव इवेंट करते हो, व्हेन यू टेक द माइक, स्टार्ट विद अ वेरी वार्म ग्रीटिंग. सबको ट्राई टू ब्रेक द आइस बिटवीन पीपल, बिकॉज हो सकता है बहुत लोग एक दूसरे के साथ ऑडियंस में जो एक दूसरे को नहीं जानते, बट व्हेन यू ब्रेक द आइस बिटवीन देम, तो वो लोग सब लोग मिलके आपका काम एंजॉय करेंगे, राइट. सो ब्रेक द आइस, मेक पीपल अराउंड यू फील कंफर्टेबल. ये हो गया आपके इंटरपर्सनल स्किल्स. नाउ इफ आई टॉक अबाउट स्पेसिफिक स्किल्स, वॉइस मॉड्यूलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक से फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अ डे एज एन एंकर, like I'll say something like, good morning everyone, my name is Shubhajit Ghosh. First of all, thank you so much for beating the traffic and being with us over here. Mumbai is never really easy when it comes to traffic, so thank you so much for being with us over here and beating the traffic and winning right from morning itself. So big round of applause for yourselves please. This will be my starting tone for an event. But मैं ये soft tone पे बात नहीं करूँगा when I'm doing an award show, when I'm calling winners. Like say एक award आ रहा है, like say, and the best actor goes to the one and only XYZ. Give it up for XYZ. Everybody please make some noise. उनके मेहनत की वजह से उनको ये मिल रहा है अवार्ड. This is a result of his or her hard work. And आप लोग अगर ताली बजाओगे, उससे और ज़्यादा उनको motivated feel होगा. So come on, give it up for her. So my energy is now over here. So situation के हिसाब से energy read करना, situation read करना, कौन से situation पे आपका कितना energy involve होना चाहिए, कहाँ पे वॉइस बैरिटोन ज़्यादा होना चाहिए, कहाँ पे कम होना चाहिए, कहाँ पे पिच ज़्यादा होना चाहिए वॉइस का, कहाँ पे कम होना चाहिए. दीज आर द स्पेसिफिक स्किल सेट्स दैट यू नीड टू लर्न एज एन एंकर. एंड अगर आप नर्वस हो इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल, मैं बोलूँगा कि यार डो नॉट ट्राई टू मेंटेन आई कॉन्टैक्ट विद एवरीवन. ऑडियंस में एक कोई इंसान पकड़ लो जो आपके काम के साथ रिलेट कर रहा है, शायद आपको स्माइल कर रहा है. सो यू विल ऑल्सो गेट कॉन्फिडेंस. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, गेट रिड ऑफ द फियर कि कुछ गड़बड़ हो सकता है. अगर कुछ गड़बड़ होगा भी, हैव दैट थिंग कि यार मैं कोई भी सिचुएशन से कुछ भी हो जाए, चाहे अवार्ड शो में कंसोल में कुछ इशू हो गया, प्रेजेंटेशन नहीं चल रहा है किसी का, मैं कुछ ना कुछ तरीके से मैं संभाल लूंगा. बीट रियल लाइव इंटरेक्शन, मैं जैसे स्टेज में नहीं रहता, मैं ऑडियंस के पास चला जाता हूँ. बिल्ड दैट पर्सनल कनेक्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. तब जाके आपको लोग बोलेंगे कि यार यू वर एन एंकर, you hosted all of us. You did not just host the event, you hosted all of us. Right. That experience as an anchor, you are creating an experience. So focus on that. जैसे आप एंकरिंग कर रहे हो, क्योंकि ये अलग प्रोफेशन है, Right. तो इसमें
काफ़ी चीज़ें डिफरेंट होंगी, तो आप कैसा टाइप का लाइफ पार्टनर चाहते हो, उसमें क्या क्या ट्रेड्स देखते हो आप? सो द थिंग इज कि बिकॉज एंकरिंग इज नॉट 9 to 5 प्रोफेशन, ऐसा कोई फिक्स्ड वर्क नहीं है, सैलरी पेचेक डे ऐसा नहीं होता। तो एक तो देखो ऐसा, अभी तो देखो मैं बोलूँगा तो उसमें भी स्टेबिलिटी नहीं है, कंपनीज अपने ले ऑफ्स कर रहे हैं, Right. देयर इज नो स्टेबिलिटी इन एनीथिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब पहले लोग बोलते थे कि यार एक स्टेबल जॉब कर लो, बिजनेस में मत जाओ, ये उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, बट जॉब्स में भी अभी स्टेबिलिटी अनफॉर्चुनेटली नहीं है। आई सी सो मेनी पीपल, मैंने देखा इंस्टेंसेस 4-5 साल एक जगह पे काम कर रहा, अचानक एक ईमेल आ गया कि यू नो वी डोंट रिक्वायर योर सर्विसेज फ्रॉम द नेक्स्ट डे। सो स्टेबिलिटी तो कहीं पे नहीं है, बट लाइफ ऑफ एन एंकर इज नॉट लाइक कि जॉब स्विच, कि आपने आज जॉब लिया, कल में आप दूसरे जगह पे इंटरव्यू देने जाओगे। इट्स अबाउट पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग। सो ऐसे इंसान के पार्टनर को बहुत अंडरस्टैंडिंग एंड फेथ रखना पड़ेगा इन द अदर पार्टनर। ओके। where I feel I am lucky because my partner does have that faith in me. वो मुझे मोटिवेट करती है, वो मुझे कॉन्फिडेंस देती है कि वट एवर आई एम डूइंग राइट नाउ इवेंचुअली जाके आप और उस चीज़ को और बेटर करोगे और अपस्केल करोगे, अपने बिजनेस लाइन को और बढ़ाओगे। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी आई थिंक partnership is more than the profession, bro. It's about individual connection and relationship. ओके। तो मेरे लिए तो ऐसा नहीं है कि हाँ, बट एक जो है कि स्केड्यूल ऐसा फिक्स नहीं होता, कभी कभी संडेज को भी काम होगा, ये बेसिक चीज़ें जो समझना है। बाकी तो यार मतलब यू आर ऑल डीलिंग विद अ ह्यूमन बीइंग। एंड आपने कभी मौत के बारे में सोचा है? यार मौत के बारे में ऐसे सोचा तो नहीं है, बट इट्स अ आई मीन देखो, सबको आना है एक दिन, कभी ना कभी आएगा, यू कांट कंट्रोल। जो जब लिखा हुआ है, ऊपर वाले ने जब लिखा है, जो डेस्टिनी में होगा तभी होगा। आपका बिगेस्ट फियर क्या है लाइफ में? बिगेस्ट फियर इज ऑफ कोर्स लाइक सो मेनी अदर पीपल इन द वर्ल्ड, लूजिंग योर लव्ड वंस। वो तो देखो हर किसी का ही होता है, बिकॉज एक इंसान उसमें ह्यूमन इमोशंस तभी आते बिकॉज ऑफ द लव्ड वंस, राइट? आपको जिस तरीके से बचपन से रखा जाता है, सो फियर तो वही रहेगा हमेशा। सो touch wood, my parents are healthy, and so I don't have like a huge family. Unfortunately, I lost my grandmother in the beginning of the year. So वो एक चीज़ था, but I mean God is kind, let everybody be healthy, let everybody who are close to their loved ones be healthy। मैं तो हमेशा ये दुआ करूँगा सबके लिए। ओके। एंड जो इस प्रोफेशन में आ रहे हैं उनको क्या सजेशन देना चाहोगे, एंकरिंग जो स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि इट्स डिफ़िकल्ट किसी के लिए भी मुंबई आके अपना सपना देखना कि मुझे ये करना है परसिस्टेंटली। सो द एंकर्स हु वांट टू कम, आई थिंक इट्स अ गुड क्वेश्चन। मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि if you're genuinely passionate and genuinely interested about this field, if you genuinely want to make a difference with your conversation, बातचीत अगर आपको अच्छा लगता है, if you're passionate about it, then only you go and be a part of this thing. सिर्फ the kind of money involved या फिर the kind of perks involved उसको देख के अब मत आओ, बिकॉज जस्ट लाइक एक्टिंग, एंकरिंग में भी बोलूँ, अगर एक दिन में 1 लाख 1.5 लाख कमाने वाले भी एंकर्स है, एक दिन में 3,000 4,000 कमाने वाले भी एंकर्स है। सो आप इमीडिएटली उस लेवल पे नहीं पहुंच जाओगे, और वो लेवल पे पहुंचने के लिए आपको आपके पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना पड़ेगा। आप अपने ऊपर क्या काम कर रहे हो टू बी एट दैट लेवल इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक अगर आप देखोगे कि अराउंड सेलिब्रिटीज़ आप रहोगे, आप बड़े बड़े इवेंट्स करोगे, आप कॉर्पोरेट्स के साथ मिलोगे, ट्रैवल एक्सेट्रा एंड ऑल दीज आर गुड, और उस मुकाम में पहुंचाने के लिए अपने आप पे आप क्या कर रहे हो इज समथिंग दैट यू नीड टू काइंड ऑफ ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड। सो if you're doing it just for that money part, then please, but if you're looking forward to putting in hard work, consistency over a long period of time, and आप जद्दोजहद करने के लिए तैयार हो, and you know that you can deal with uncertainty, and वही आपका पैशन है, आप स्किल सेट लाते हो, and you can make a difference, you can create an experience for people, then आप definitely करो। And I think I'm pretty sure so many anchors are there, who are even better than me. I'm pretty sure there are many मैं अपने आप को बेस्ट एंकर नहीं कहता। It's all about the skill sets that you bring to the table and जो experience आप लोगों को देते हो। So at the end of the day, इवेंट के बाद आपको लोग आके कहने चाहिए कि यार मज़ा आ गया, ये होना चाहिए आपका गोल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वॉज ग्रेट हैविंग यू। माई प्लेजर भाई, थैंक यू सो मच। एंड जितने लोग भी आप ये वीडियो देख रहे हो, आई मस्ट से दैट इनके चैनल पे भी आप बहुत सारे, मैं तो आज एंकरिंग एंटरटेनमेंट रिलेटेड मैंने बातचीत किया, बट ही हैज़ बीन डूइंग पॉडकास्ट फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, एंड कॉन्वर्सेशंस अच्छे लाते हैं फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, डिफरेंट प्रोफेशंस, डिफरेंट इंडस्ट्रियलिस्ट्स एज वेल। सो प्लीज़ इनके चैनल को आप सब्सक्राइब करो, देखो, एन्जॉय करो, एंड हैव अ लॉट ऑफ फन।
and stay tuned to his YouTube channel and do subscribe. एंड अगर आप लोग ने शुभजीत घोष का भी चैनल नहीं देखा है तो उनका चैनल देखिए जाके, वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग सेलिब्रिटीज़ बुलाते हैं चैनल पे, तो आप उनका भी चैनल देखिए। और अगर कुछ कमेंट्स है, कुछ आपको डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। बिल्कुल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस। Thank you so much. God bless all of you.